सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल मेरी सीरीज चल रही है विद एंडेवर पाकिस्तान, वेयर वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर पाकिस्तान्स 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप स्लैश बिजनेसेस। और इसमें आई फील लाइक अगर इस तरह की लिस्ट पाकिस्तान में बनाई जा रही हो, तो इट कैन नॉट पॉसिबली बी completed without speaking to possibly Pakistan's one of the biggest, if not the biggest, startup. I don't know उसको आप startup भी बोलेंगे अब तो, it's a huge business. They've recently launched a new service as well. So they're expanding into last mile delivery space as well. But Daraz Pakistan, जो कि it's a in many ways it's the OG startup of Pakistan. एक ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान से शुरू हुई और अब I believe 5 countries के अंदर exist करती है with the same name. There's a lot of pride attached to this company as well. There are a lot of questions attached to it as well because in many ways they are the primary e-commerce जो है ना वो हमेशा डिजिटल रेवोल्यूशन में पहली चीज़ होती है और पूरी दुनिया के अंदर ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स जो आए, उसने आके बहुत ज़्यादा बिहेवियर भी चेंज किया, उसने बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल भी चेंज किया। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन ये बात करते हैं कि क्या दराज की वो पेस रही है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वो उससे आगे निकल गया है, क्या एक्चुअल आउटकम रहा है फॉर समथिंग लाइक दराज विच अगेन इज़ currently, if and they can verify this as well, they're the largest e-commerce platform in Pakistan. आज हमारे साथ मौजूद हैं दराज के CEO एहसन साया. But before I get into that conversation, quickly I wanted to mention Endeavor Pakistan is a phenomenal community जो कि पूरी दुनिया के different entrepreneurs को, founders को connect करती है. If you want to know more about them, the link is down in the description. साथ ही I would love if you guys, क्योंकि 80% लोग आते हैं, सुनते हैं और निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो if you can subscribe to the channel. I hate asking for this, but YouTube works like this, so मुझे recommend किया जाता है टीम की तरफ से भी और YouTube की तरफ से भी कि बराए करम लोगों से कहा करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. And if you like the video, please do like the actual as well because it helps the algorithm. But anyways, this is Thought Behind Things, Season 5, Karachi Studio. Assalamu alaikum, Ahsan. Thank you so much for taking the time out and joining us. Walaikum salam. Thank you so much for having me here today. It's been a while. 2-3 साल से हम मुलाकात कर रहे थे, trying to set this up. I'm glad that you're finally here. I want to just sort of start off, before I talk about Daraz, about everything that you guys are doing, I want to understand a bit more about you. Where were you born? Early life आपने कहाँ पे गुजारी? And what were some of the themes growing up that you feel like made you the sort of person that you are today? Yeah, I think so. I was born in Karachi. I think मैं तकरीबन 4-5 साल का था when we moved. I grew up mostly between Saudi Arabia, US, and Canada. I think for me, when I really dissect my life, I would say some of the foundations had a lot to do with the principles, obviously, that my parents taught me. My father was, in fact, both my parents are very principled people. But I think a lot of what I carry today, in fact, अभी भी कोई अगर दराज में भी कोई मसले होते हैं, then I'm one of the first people I speak to is my father for advice. And the way we've built the company, just तरीके से हमने values, I think दराज में भी डाली हैं. Of integrity, of doing the right thing, customer experience, customer service. ये जो सारी चीज़ें, I think it was a build-up of things in my life that have, alhamdulillah, led up to this. Interesting. What led you to move out of Pakistan for all those years? हाँ तो I was 4 or 5, but I think my family उस time पे इसलिए move हुई थी because the Karachi की situation wasn't so great. I think this was 91, 92. तो उस वक्त पे my father decided कि यार let's move out of Pakistan. तो वो Saudi Arab गए. फिर उसके बाद soon after we followed him there as well. There's 3 of us siblings. And so all of us moved to Saudi for a while, and then my brother moved to Canada shortly after. And Canada, I mean, you essentially all of your primary and high school education was सारी Saudi की थी. I have a very complicated. So I had never lived for more than 3 years in any place until university. I moved around a lot. मगर ज़्यादातर I would say कि elementary school Saudi में थी. खैर उस Athens में भी थी, Athens, Georgia. फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल की ह्यूस्टन टेक्सास से.
and Saudi Arabia. फिर Interesting. मैं in fact last semester of high school मैं Canada में था. So I've moved around a lot. So अभी भी अगर आप, if you find me in an elevator, by the third floor I'll have made a friend in the elevator because that's what I've always had to do. That's actually very interesting because I was actually discussing with my wife the other day कि यार, you know, I have a 4-year-old and I have a almost 1-year-old daughter. और मैं डिस्कस ही कर रहा था कि यार मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं डिजिटल फर्स्ट बंदा हूँ कि इंसान जो है ना हर 2-3 साल बाद मूव कर ले, कभी मलेशिया चला जाए, कभी तुर्की चला जाए. एंड शी बेसिकली काउंटर्ड दैट कि यार बच्चे तो पागल हो जाएंगे. वो तो आपने एक बेस बनाई, स्कूल में गए, फ्रेंड्स बनाए, फिर आप उनको अपरूट करेंगे, उनको एक नई जगह पे उठा के ले जाएंगे. And so I'm curious, as someone on the receiving end of that, how I mean, did you hate it? Did you be like, yeah, what was wrong with my parents? Why couldn't you let me have long-term relationships? Or do you think at the time, as well as in hindsight, you do appreciate the exposure that you got? That because my thought is the exposure value, right? In today's day and age, if you can go to so many cultures and you have the opportunity, why not? But I'd love to know your opinion on that. Yeah. So I don't want to partake in the argument between my wife and you, but I'll tell you because I've thought about this a lot. Yeah. And I think it was one of the best things that happened to me. Alhamdulillah. It doesn't mean कि उसमें आसान हर था? चीज़ आसान थी. Yeah. आसान नहीं था, right? अगर हाई स्कूल देखूँ तो 9th and 10th grade I was in Houston, 11th and half of 12th में सऊदी में था, और फिर मैं ह्यूस्टन गया, right? मतलब ये कि if you think of conservative, two opposite spectrums of conservative too, Yeah. right? So and this was sort of when I was in Houston, it was sort of around the time of 9/11, right? So it wasn't easy. मतलब मुझे याद है कि I think मेरे 2 prom हुए थे, but at the same time, it really taught me a lot about different cultures, right? And also how to acclimatize. And I think it's very important. Like if I look at one of the, alhamdulillah, the qualities Allah has given me, I think one of the qualities is that I can get to know people at a deeper level very quickly. Because like I said, all my life I had to. So I think it's not easy necessarily, मगर इसके फ़ायदे बहुत हैं. I think in today's day and age where we're going from globalization to localization, and maybe perhaps in years we go from localization to globalization, you need to be very adaptable. And I think when you move, it forces you to become adaptable because it's the only way. You don't have the luxury of, कि यार मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा या मैं ये नहीं करूंगा. You just like, यार ठीक है अब ये है, now we move forward. So I think इसमें बच्चों के लिए ठीक है उस time पे I think it has its challenges. And no doubt it's not like it was always easy. But alhamdulillah, now when I look back at it, I think it made me a lot of who I am actually, in that in the way I behave and the way I also am exposed to a lot of different cultures. मतलब मेरी I guess जो मेरी स्कूल थी सऊदी में, I think maybe graduating class maybe 70-80 बच्चे होंगे और उसमें से I think it was like 35 nationalities, right? And then going to Houston and then going to Canada. It's like all of these places, आपका जो exposure मिलता है, उससे you start also very early knowing कि यार आपकी priorities क्या हैं, आपको किस किस्म की life चाहिए, and your personality starts shaping. And I think alhamdulillah for me positively, yeah. So I guess your wife might not learn off this podcast. Yeah, I'll send her a clip. मुझे ये बताएं कि you mentioned values that your parents inculcated in you. I feel like, and again another area that I think deeply about. A lot of these developed societies, more often than not, वहाँ पर वो चलती इस वजह से because they're high trust societies, and so they're able to create higher value just because people trust each other, and you don't have to necessarily go through a lot of जो developing या emerging markets के मसले होते हैं कि everybody is trying to snatch the pie from the other person rather than working together to increase it. You left at 4, and I'm not sure how much of that traveling included you coming back to Pakistan and spending like a substantial amount of time here to be able to absorb really what's going on there. But Saudi, again, I spent a couple of years in Dubai. I was born in Saudi as well, so family की जो 17-18 साल जो parents वहाँ पे रहे, तो I've heard a lot about कि it's a beautiful society, बहुत ज़्यादा safe society है. Dubai was very similar as well. West में भी आप जाते हैं तो in many ways, and particularly during the time that you were there,
So it's very collaborative and it's very different. And so one would assume कि someone like that, and again while we were in Dubai, तो मैं ये बहुत सोचता था कि यार मैं बच्चे को यहाँ पे रखा हुआ है, कितनी सेफ जगह है, ज़बरदस्त है। फिर मुझे ख्याल आता था, मैं सोचता था यार मैं इसको स्टंट तो नहीं कर रहा कि इसको पता ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जिसमें हम बड़े हुए हैं और हम उसमें स्ट्रीट स्मार्ट हुए हैं और उसमें हमने मनूवर थ्रू करना सीखा है। द लैक ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स उससे कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो आगे जाके सस्टेन ही ना कर पाए अगर उसको करना पड़े, राइट? आपने ये सारा टाइम गुजारा एंड देन 2018 इज़ व्हेन यू एसेंशियली केम बैक टू पाकिस्तान फुल टाइम, and you've been there for the last almost 8 years now. How has that transition been like from the side? I'm curious what your if you were married at the time, what your wife or your friends or peers thought, yeah, why are you going to Pakistan, what's going on there? Yeah. And then खुद भी बंदे को ख्याल आता है कि यार अच्छा, are you sure, do I want to go there? 2018 was also, उस वक्त भी एक economic crisis भी up and down हो रहा था. So tell me about that transition of re-entering Pakistan in a very different way now that you're grown up and fairly successful, well settled in many ways. Alhamdulillah. Look, I think जब to be honest मेरा कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान मूव होने का, and when I was approached by Daraz, it was sort of the first time I thought about it, and at that time I was running my own startup in Canada, and I think of course feedback सबका ये था कि यार पाकिस्तान ना जाओ, you're gonna fail in Pakistan. And actually that's sort of what, like, my life mantra has been, you should be comfortable being uncomfortable. So I was like, yeah, Pakistan will definitely make me uncomfortable. And so what if you fail? मतलब ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो वापस आ जाना. It's on the end of the world. आजकल मतलब ये नहीं है कि you can take a flight back, your parents are there, everything is there, तो आप वापस आ सकते हैं. तो आई थिंक इसमें एक ये था कि यार अगर मैं अभी नहीं करूँगा और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा और कब करूँगा. और ये आई थिंक इसमें मेरे अंदर एक आई थिंक जज्बा आ गया था. My dad is also a die-hard patriot, so when I said yeah मुझे करना है, and I think I'll tell you what sort of my framework was. एक तो ये था कि यार alhamdulillah I had a successful career in investment banking. फिर एक I had a startup which struggled a bit. और फिर उसके बाद I was like, यार मुझे कुछ लाइफ में ऐसा करना है that I can have an impact. मैं कुछ चेंज ला सकूं. And I think Pakistan gives you that better than anywhere else. कि आपको अगर चेंज लाना है तो नेबरहुड में चेंज लाएंगे, it's bigger than some countries. तो इट वाज वन ऑफ दोस कि यार कि मैं अभी नहीं करूँगा तो ये मौका कभी आएगा या नहीं आएगा. और ठीक है, अगर मैंने किया एंड नहीं चला तो सो व्हाट, इसमें will I learn or will I not learn? And so that was I think a very important deciding factor कि यार अब मुझे I didn't matter so much कि लोग बोल रहे हैं कि you'll fail. I was like, yeah, ठीक है, I'll fail again one more time. It's okay. And अगर as long as you fail and you learn, then it's not a failure. So worst case scenario, ठीक है, I'll have I'll live a few years in Pakistan. If it doesn't go well, I'll come back or I'll go somewhere else and I'll learn. And alhamdulillah, since I've come here, I've only been inspired. Yes, there's problems. It's not like problems नहीं है. There's lots of problems. मतलब आपकी regular normal day to day life में बहुत सारे मसले आते हैं. मगर I think आपको एक choice भी बनानी पड़ती है कि यार मैं या तो एक road पे अगर जा रहा हूँ, am I going to look at the flowers or am I going to look at the gutter? And it has to be a very deliberate and conscious decision. And it doesn't mean कि आप रोड ना देखें, मगर आपको थोड़ा अपने व्यू भी है वो थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ता है कि you look towards the flower, you look towards the things that are going well. Pakistan has a tremendous talent. Tremendous. Honestly, I did investment banking for 7 years and I would say alhamdulillah जो talent हमारे पास ना तो सिर्फ दराज में मगर बहुत सारी कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं, it's toe to toe with some of the best people I've ever worked with, and you see that in so many organizations in the world. They want Pakistani talent. I can say this for Daraz as well कि अगर कोई सिंगापुर में कोई छोड़ता है तो first priority कि यार पाकिस्तान में बंदा ढूंढते हैं हम, because they're very good. There's very good talent here. So I think alhamdulillah I've been very fortunate, very lucky. I've made good friends here. And alhamdulillah I do something that I absolutely love, and more than all of that is alhamdulillah I do something that I can have an impact. कि हमारे पास दराज पे we have more than 100,000 sellers on our platform.
And I've met sellers. हमारा एक हर साल सेलर समिट होता है, एक लाहौर में होता है, कराची में होता है. And almost honestly, every year I do it, I'm almost left in tears. And because you meet people and you hear from them the impact that what your work had on their life, and आपको फिर एहसास होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ. और मैं इवन फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट आर दराज, मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं. आप काम तो आपको कहीं भी मिल सकता है, मगर आपको ये जो इम्पैक्ट है आप वो कहीं नहीं आप वो कहीं बाहर नहीं ला सकें. आप यूएस में, कनाडा में, यूरोप में आपको वो इम्पैक्ट लाना आपके लिए मुश्किल होगा. और अगर आपका घर आप खुद साफ़ नहीं करेंगे तो कोई और नहीं साफ़ करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा. तो अगर आपको है कि यार ये मुल्क बेहतर हो तो आपको करना है. ये नहीं कोई आके आपको एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एंड यू जस्ट से यार perfect, great. Like you have to do it. You have to do your part. You are one of the youngest managing director जो कि पाकिस्तान में एक सीरियस कॉर्पोरेट या एक सीरियस कंपनी के अंदर अपॉइंट हुआ. My understanding is you were early 30s when you joined. Yeah, I was 32. Yeah, so at the time पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि people tend to not take you very seriously when you look too young. And so I'm curious कि when you became the MD, how was that? I'm sure a lot of people that were working for you possibly were potentially older than you. A lot of the partners, agencies, this, that, who would have been older than you would have had a far greater experience. And so this context is not necessarily driven by Daraz, but driven by maybe someone is working somewhere and अपने career में अपने उसमें ना there's a lot of politics in Pakistan, there's a lot of bureaucracy, and वो इस तरह की चीज़ों पे होती है कि like लोगों को अपनी स्पेस का या अपने उसका ईगो हो रहा होता है कि यार ये कल का बच्चा आके हमें क्यों कर लेगा. खासकर जो जेन जी जनरेशन है उनका तो ये कि they really want to go in and break stuff. And so I'd love to know how you maneuvered through that and how challenging was it to solve. क्योंकि ये आज कहना बहुत आसान है कि ऑब्वियसली ई-कॉमर्स है, यूँ करेंगे वो करेंगे ग्रो हो जाएगा. 8 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम के ऊपर तो एवरीबडी वाज लाइक कि ये सब टाइम ज़ाया कर रहे हैं, एक्चुअल में तो ऐसे ही है. देयर वाज you come from a Memon family, there was a very particular सेठिया स्टाइल कि यार हमें पता है, हमने 100 साल किया, ये तुम कल के बच्चे ना बताओ हमें आके, राइट, कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी. So how was that in the start? Yeah, look, step one, I had to grow a beard so that I would look a little bit older. मगर देखिए, आई थिंक इसमें एक तो फ़ायदा ये था कि दराज पे जो पॉपुलेशन, द टैलेंट वी हैड वाज वेरी यंग. और हमारा जो माइंडसेट था वो ये था कि यार एक्चुअली लेट्स ब्रिंग बच्चे एंड गिव देम एन इनसेन प्रॉब्लम एंड एम्पावर देम टू सॉल्व इट. So I think, even at 32, I was definitely one of the older ones. Right. So from a work perspective, I think it was, alhamdulillah, very manageable. हमारे पास जो talent था, it was, like I said, it was younger, very hungry. और उस एज पे आप सब एक साथ में घुस के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन रियली गेट एवरीवन इनटू वन प्लेस एंड से कि अगर ये मसला है तो हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. ऑब्वियसली आपको ये जो चैलेंज ज़्यादा आता है वो इवन पार्टनर से ज़्यादा गवर्नमेंट में आता है. इसलिए वो आपको देखते हैं और बोलते हैं ये बच्चा कौन है, ये कहाँ से आ गया बच्चा. आई रिमेंबर हम लोग एक दफ़ा नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे और उस वक्त हमारी जो ग्लोबल CFO थी और हमारा एक टैक्स का इशू हो रहा था उस वक्त भी. तो वी वर जस्ट सिटिंग इन द बैक, 2 kids, just trying to understand, we somehow just got ourselves in. हमें ये भी नहीं पता हम कैसे अंदर घुस गए थे. तो सब देख रहे हैं कि यार ये 2 बच्चे स्नीकर्स पहन के आ गए हैं, कौन है, क्या ना वो क्या समझते हैं. तो आई थिंक इसमें दिस वाज अ लिटिल बिट आल्सो फॉर, लाइक यू सेड, फॉर जेन ज़ी, इज अ लिटिल बिट एम्पावरिंग कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. मतलब व्हाई कैन आई नॉट चेंज द सिस्टम, व्हाई कैन आई नॉट, ये क्यों है कि हर चीज़ सिर्फ दुकान में या ऑफलाइन या टैक्स के बगैर या कैश पे बिकनी चाहिए. कि हम हम इसको बेहतर क्यों नहीं बना सकते, हम लॉजिस्टिक्स को बेहतर क्यों नहीं बना सकते, हम पेमेंट्स को बेहतर क्यों नहीं बना सकते, हम कस्टमर एक्सपीरियंस को क्यों बेहतर नहीं बना सकते. हम ये चीज़ें, और लोग बोलते थे यार पाकिस्तान में लोग रिव्यूज़ नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे भाई, पूरी दुनिया करती है, हम क्या कोई, लाइक, आर वी नॉट ह्यूमंस. मतलब आपको भी कुछ खरीदते हैं तो यू वांट टू नो कि यार ये चीज़ अच्छी है या नहीं है.
आप अगर दुकान से जाके पूछेंगे, आप दुकानदार से पूछेंगे, वो भाई यह तो बेस्ट है। जैसे कभी आप खाने जाते हैं तो बोलते हैं यार क्या एक मशवरा दें, क्या लेना चाहिए, तो सब अच्छा है। वही है ना कि हर चीज़ सब अच्छा है, मगर तो ऑनलाइन आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। And I think our Pakistanis, like any other population, will adopt a lot of those things. Maybe कोई चीज़ें हैं जो जिस स्पेस पे हम चाहते थे कि हों वो नहीं हुई उस स्पेस पे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ना नहीं होंगी, वो होंगी। It's just a matter of when. And then this is companies like Daraz. What's powerful about them is that they democratize these industries. You democratize e-commerce, or commerce actually. You don't need to have कि आप मेरी एक सदर में एक दुकान है जिसका मैं रेंट दे रहा हूँ 4 लाख रुपए, और फिर मुझे हर महीने कोई ना कोई नया मसला है। मैं अपने घर से शुरू कर सकता हूँ। हमारे ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो एक्चुअली शुरू हुए थे ट्रेडर्स से, और फिर टाइम के साथ साथ हमने बोला यार प्राइस कम करो, क्वालिटी बेहतर दो, प्राइस कम करो, क्वालिटी बेहतर दो। तो इवेंचुअली उस बंदे ने बोला कि यार मैं ट्रेडिंग सिर्फ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता कि ऑर्डर आए फिर मैं जाके बाजार से ढूंढूं फिर मैं बेचूं, इसलिए उसमें आप जो प्राइस मांग रहे हो उसमें मैं कर ही नहीं सकता ये काम। तो उसने कहा कि यार मैं खुद बनाना शुरू करता हूँ, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता हूँ। तो अब मैं बहुत सारे सेलर से मिलता हूँ जो इवॉल्व हुए हैं, जो ट्रेडर से गए हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। And that's a very good positive change, So I think obviously I think when you are a बच्चा, you sort of like यार ये क्यों नहीं हो सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते ये like it's almost like the possibilities are endless. And then you're working with a lot of other बच्चास, right, कि सब सोच रहे हैं कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, कि हमें I mean आप सोचें कि अगर 21-22 साल के आप हैं, आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और आपको एक जगह मिल रही है जहाँ यार ये बहुत एक बड़ा मसला है और हम किसी को हमें पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, मगर हम घुस के सब साथ में सॉल्व करेंगे और हम आपको बोल रहे हैं यार नो प्रॉब्लम इफ यू मेक अ मिस्टेक, एज लॉन्ग एज लर्न फ्रॉम इट एंड इटरेट क्विकली। तो दैट्स वेरी एम्पावरिंग। मतलब मैं जब 21 साल का था तो मुझे इवन दो आई वाज डूइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो फ्रीडम नहीं थी। सो आई थिंक वो एक बीइंग एट अ कंपनी जहाँ आप आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं और आपको ये गाइडलाइंस दी होती हैं कि यार ये मसला है, the right answer is not just ABC. अगर होता तो मैं आपको बताता ये करो। I think that's it's very fun. तो मतलब alhamdulillah, I think I can say that we have a lot of fun at work. Like alhamdulillah, I haven't had days where I haven't felt like going to the office, and I think most people, because we're doing things we're punching above our weight. Actually, all of us, I think, and alhamdulillah, Daraz gave many of us an opportunity to punch above our weight. कि हमें जो चीज़ें ट्राई करनी थी वो हम कर सकते हैं because of Daraz. Tell me about the evolution of the last 8 years since you've been there. So where was Daraz at the time and आज कहाँ पे खड़ा हुआ है? And if you can give me some context of the scale that you're operating on. Yeah, I think उस वक्त हमारे I think तकरीबन 15,000 सेलर्स थे 7-8 साल पहले। आज माशाल्लाह हमारे 1 लाख से ज़्यादा सेलर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। ये 1 लाख एक्टिव सेलर्स हैं, मतलब ये महीने में कुछ ना कुछ जी निकाल रहे हैं। ये पिछले 3 महीने में 100,000 सेलर्स कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। Right. So this number over time has not only grown significantly, मगर इसके साथ साथ तो कस्टमर्स हमारे तकरीबन आप सोचें कि हर दिन 20 से 25 लाख लोग हमारे ऐप पे आ रहे हैं। और वो that's crazy, by the way. yeah, it is crazy. 20 से 25 लाख लोग हर रोज आ रहे हैं। ये नहीं कि सारे खरीद रहे हैं, मगर जैसे मुझे याद है उस दिन मैं अपने घर पे आइस बात बना रहा था, मुझे शौक है पता नहीं ठंडे पानी में बैठने का। तो मैंने अपने किसी को घर से भेजा था कि यार ये मुझे पंप चाहिए। तो उसने मुझे उधर से फ़ोन किया और बोला ये 1,000 रुपये का मिल रहा है। तो मैंने कहा मुझे तस्वीर भेजो। मैंने वही तस्वीर दराज में अपलोड की और वो चीज़ 250 रुपये की थी। तो मैंने उस बंदे को मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा ये दराज से मुझे 250 को मिल रहा है, तुम ठीक है 300 ले लो, मुझे अभी चाहिए, फ़ौरन आ जाएगा मेरे पास। 1,000 रुपये और 250 रुपये का। इसे कहा साहब मैं 250 में नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जो बंदा कर रहा है वो हो सकता है बहुत क्वांटिटी ले रहा हो, वो 250 रुपये में कर रहा है। तो आई थिंक ये एवोल्यूशन कंज्यूमर्स के साथ भी हुआ है कि ऑब्वियसली ये जो 20-25 लाख लोग, इनफैक्ट जो अभी 11 आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तकरीबन 60 लाख लोग हमारे ऐप पे आएंगे उस दिन, 60-70 लाख लोग। दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल that are that are coming with the intention of buying. And when people say e-commerce
क्या है, तो यार इतने लोग के पास ऐप है, वो कंसिडर कर रहे हैं, वो देखते हैं कि यार प्रोडक्ट की रिव्यूज़ क्या है, प्राइसिंग क्या है, वो अपने आप को दे डिस्कवर न्यू हॉबीज़, दे डिस्कवर न्यू कैटेगरीज जो पोटेंशियली जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जो आसानी से नहीं मिलते हैं, वो आप वो दराज पे डिस्कवर कर सकते हैं. हमारे पास वी हैव मोर देन 20 million products on our app, right? So it gives you an ability to really discover and buy new things that and even if you don't buy, to be able to say यार ये चीज़ की प्राइसिंग कैसी है, हाउ डज इट कंपेयर टू जो मैं अभी अपने कोई बाज़ार से जो खरीद रहा हूँ. तो आई थिंक एवोल्यूशन अलग अलग तरीक़ों से है. एक तो ये है कि सेलर्स की तरफ से देयर इज़ मच मोर मैच्योरिटी. मुझे याद है कि जब मैं पहले मूव हुआ था तो मेरे पास एक नोटबुक होती थी अपने साथ. जब भी जिम भी जाता था, कोई बताया यार मैंने फ़लाना चीज़ रात से मंगवाई, वो सही चीज़ नहीं आई और रिटर्न में ये मसला, और मैं हर चीज़ में लिखता था नोटबुक में, और फिर मैं जाके हम लोग सॉल्व करते थे एक एक करके. आज अल्हम्दुलिल्लाह आवर कस्टमर एक्सपीरियंस इज सिग्निफिकेंट बेटर. हमारे रिटर्न्स आई थिंक तकरीबन 1-1.5% हैं. मगर वो सेलर्स की मेच्योरिटी के साथ भी आता है. सेलर्स को समझ आता है कि यार मैं अगर एक चीज़ बोलूँगा और मैंने कुछ और भेजा तो मुझे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी लगेंगी, मुझे रिटर्न के पैसे भी लगेंगे, और मेरी मेरी जो चीज़ है वो आगे वापस बिकेगी नहीं. तो अब उल्टा सेलर बोलता है, उसमें नोट लिखता है कि यार प्लीज़ गिव मी 5 स्टार रिव्यू, मैंने आपके लिए अच्छी सर्विस दी है, आपको फॉलो अप करता है. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एवरी सेलर, मगर सेलर्स में भी मेच्योरिटी टाइम के साथ साथ आती है. ब्रांड्स में भी ये एक मेच्योरिटी साथ साथ आती है. तो सेलर्स की तरफ से एक मेच्योरिटी आई है कि वो अब समझते हैं कि यार ऑनलाइन मुझे कैसे बेचना है, डेटा कैसे मुझे रीड करना है. इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली मैंने एक सेशन किया था हमारे फैशन सेलर्स के साथ, और एक सेलर मुझे जो चीज़ें हमारी डेटा और ऐप के बारे में समझा रहा था, मुझे भी नहीं पता था. दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. उनको पता होता है कि यार अगर एक चीज़ इतनी प्राइस पे बिकेगी और आप मुझसे ये मांग रहे हैं तो मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये दूंगा, मेरी फिर भी बिक जाएगी. और मैं एंड आई वाज एक्चुअली ब्लोन अवे दैट इट वाज ये देखिए कारोबारी लोग हैं, इनको पता है कैसे बेचना है, मगर इनको बस एक एवेन्यू दे रहे हैं कि यार अब आप कराची में अगर आपका दुकान है तो आपका आइटम चीचावतनी भी जा सकता है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार जो पड़ोस में या करीब में जो शहर में वो आके खरीदेंगे. इट्स ओपन फॉर एवरीबडी. सो दैट्स ऑन द सेलर साइड. ऑन द कंज्यूमर साइड, लाइक आई सेड, उस वक्त पे तो ऑब्वियसली हमारे आई थिंक मे बी दिन में 5 लाख लोग आते होंगे. आई डोंट इवन नो अगर 5, आई डोंट रिमेंबर एट दैट टाइम. आई थिंक इवन लेस देन 5 लाख लोग. ऑब्वियसली बीच में जब हमने वो क्रिकेट स्ट्रीमिंग की थी तो उससे भी हैड अ ह्यूज स्पाइक इन पीपल नोइंग अबाउट द ऐप. फिर उसके साथ साथ भी शो देम कि यार हमारे पास ये असॉर्टमेंट है, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड्स इतने सारे हैं. इनफैक्ट पिछले तकरीबन 60 दिन में हमने 150 ब्रांड्स ऑन बोर्ड किए हैं दराज पे इन गियरिंग अप फॉर 11/11. एंड ये सारी जो चीज़ें ये करते हैं हम इसलिए करते हैं कि लोगों के पास एक रीज़न हो टू कम बैक टू दराज. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑन दराज नाउ. इनफैक्ट हमने 2-3 हफ्ते पहले एक चीज़ लॉन्च की थी, इट्स कॉल्ड दराज फ्री भी, कि आप जाके किसी को इनवाइट कर सकते हैं. मैं आपको एक लिंक भेज सकता हूँ, अगर आप दराज इंस्टॉल करेंगे तो मुझे 2-3 लोग अगर कुछ इंस्टॉल करेंगे तो मुझे एक चीज़ फ्री मिलेगी. अगर मैं 50 लोग करते हैं मुझे कुछ और फ्री में मिल सकता है. एंड वी आर वेरी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. सो वी लुक एट इसकी एफिशिएंसी क्या है वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग की एफिशिएंसी क्या है वर्सेस ऑफलाइन की क्या एफिशिएंसी है. तो इट्स इसमें देयर इज बीन एन एवोल्यूशन ऑन सेलर साइड एंड कंज्यूमर साइड, एंड देन आई वुड से फाइनली ऑन दराज साइड, ऑन आवर ओन साइड. जिस तरीके से हम डेटा देखते हैं, जिस तरीके से हम समझते हैं कंज्यूमर चाह क्या रहा है, उसकी सेगमेंटेशन. अब अगर कोई कंज्यूमर है जिसको 50 रुपये का डिस्काउंट है, मुझे 1000 उसको क्यों दूँ? और जिसको 1000 की ज़रूरत है मैं उसे 50 दे के क्या करूँगा? जिसको फ़ैशन चाहिए मैं उसको कुछ और बेच के क्या करूँगा? उसको मुझे फ़ैशन दिखाना है, उसको जो चीज़ें उसके लिए रेलिवेंट है मुझे वो दिखानी. तो इसमें हमारी भी अब बहुत एवोल्यूशन हुई है. इसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि दैट आवर पेरेंट कंपनी इज़ अलीबाबा. उसकी वजह से हमें बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं. इवन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिडंट नो हाउ टू डू. जिस तरीके से हमने 11/11 पहली दफ़ा लॉन्च किया, and versus what it is today, it's a very different way that we do it, the way we plan, the way we organize. So I would say those are the 3 main buckets of our evolution. That makes sense. You've said a bunch of things here and I'd be curious to know more about it. एक आपने मुझे कहा कि मैं कराची से बैठ के चीचावतनी में बेच सकता हूँ, right? So I'm curious कि जो इस वक्त, I don't know if you have the analytics for that, but इस वक्त दराज का जो buyer है वो KLI वर्सेस नॉन KLI में कितना है? बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई आस्क एवरीवन, प्राइस होए दिस दैट, जितनी मैंने अभी तक प्लेटफॉर्म से बात की है. बिकॉज मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी
पोटेंशियल प्रॉब्लम टू सॉल्व, और जो सबसे बड़ा पोटेंशियल चेंज आप लेकर आ सकते हैं वो ये लेकर आ सकते हैं कि यार KLI की दुनिया से निकल के आप GT रोड के लेफ़्ट राइट को एम्पावर कर रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पर लीप फ्रॉग है ना, वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वेट नहीं कर रहे, आप मॉल्स नहीं बना रहे, आप बहुत सारी और चीज़ें नहीं कर रहे, वहाँ पे आप उस कंज्यूमर को वही एक्सेस दे रहे हैं जो कि किसी बड़े शहर का एक्सेस है, और उसमें आप एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं जहाँ पर शायद उसकी करीबी दुकान तक पहुँचने के लिए दुनिया में 4 हाथ बदल के प्रीमियम ऐड होता रहेगा, तो वो सारा प्रीमियम आप अवॉइड करके डायरेक्टली उस तक पहुँच रहे हैं। सो अगर मैं देखूं कि 3 साल पहले तकरीबन 65% वाज कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, और अगर आज देखें तो दैट्स अबाउट 45 to 50% दैट्स नाउ हैपनिंग इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, अगर आप देखेंगे पंजाब और सिंध में, तो ऑब्वियसली टॉप सिटीज भी कराची एंड लाहौर, मगर कराची के बाद देयर इज अ बिग गैप बिटवीन इवन कराची एंड हैदराबाद. But in Punjab, it's the cities, they're a lot closer in terms of volume, and the growth is a lot faster in those cities. So I think इसमें actually like you said, इसमें e-commerce का फायदा ये है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, और आपका जो कस्टमर बेस है वो पूरा मुल्क है. और इसमें ऑब्वियसली इसमें हमने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की. इनफैक्ट हमारे पास कराची और लाहौर में दराज हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड distribution center in South Asia minus India. तकरीबन हम 2 million packages दिन के sort कर सकते हैं almost without any human intervention. तो इसमें you do that because your volume is growing very very quickly. इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से दूर लोग के अलावा लोग दराज पे बेच रहे हैं, दराज पे खरीद रहे हैं. In fact, I think last year there was about 540, can't call them even cities, it would be towns and villages, जहाँ हमने डिलीवरी की. तो it's it opens up literally the whole country. इसमें like I said, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत होती है. हमने लॉजिस्टिक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की है in the last many years. हमने पेमेंट्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की है. But अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड जो है वो it is starting to emerge in outside of KLI. And the key winning thing for Daraz over there is availability of assortment. कि वो चीज़ उनको शहर में मिल ही नहीं रही, तो वो कहीं ना कहीं से मंगवा सकते हैं, वो दराज से मंगवा सकते हैं. It's if you're in a tier 2, tier 3 city, it's not. But in Karachi maybe ठीक है, आप जाके कहीं से ले सकते हैं, मगर if you're outside of KLI, it's maybe just not accessible at all. That makes sense. In terms of logistics, run me through infrastructure काम किस तरह से कर रहा है इस वक्त. So warehousing कहाँ पे हो रही है, आपका जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो कब से आप लोग खुद कर रहे हैं, स्टार्ट से खुद कर रहे हैं, या इज दैट समथिंग दैट हैपेंड ओवर टाइम वेयर यू जस्ट सॉर्ट ऑफ टुक ओवर दैट पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस योरसेल्फ? ये जो है ये किस तरह से होता है कि यार चलो कराची लाहौर के अंदर है और उसके बाद फिर बाकी स्टेशंस में वो बस पहुंचता है, वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है? लाइक रन मी थ्रू हाउ द इंफ्रा वर्क्स रियली ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. Yeah, I'll walk you through एक तो why we did it. उस वक्त में, और ये इनफैक्ट हमने 2018 से शुरू किया था दराज एक्सप्रेस, और उसका जो मकसद था वो ये था कि जो भी डिलीवरी कंपनीज हम यूज़ करते थे वो बोलते थे भाई ये फेल डिलीवरी हो गई, ये रिटर्न हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था चेक कि वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं. तो हमने इस माइंडसेट से ऑपरेट किया था कि अगर हमें करना है तो हमें खुद करना पड़ेगा, अगर हमें सही से करना है तो हमें खुद करना पड़ेगा. और आज माशाल्लाह तकरीबन 70 से 80% जो हमारी डिलीवरीज़ हैं वो दराज एक्सप्रेस खुद करता है. और इनफैक्ट जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था, दराज एक्सप्रेस माशाल्लाह दूसरी कंपनीज़ के लिए भी अब हम लास्ट माइल कर रहे हैं. वी हैव अबाउट 90 to 100 हब्स एंड स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री. हमारे वेयर हाउसेस हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, इंशाल्लाह वी आर ओपनिंग मोर इन द फ्यूचर एज वेल. और 11 में आई थिंक हमारे पास तकरीबन 3-4 हज़ार राइडर्स और जिनको हम एक्चुअली हीरोज़ बोलते हैं. वील हैव दीज हीरोज़ ऑल ओवर द कंट्री. और जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि एक तो आपका वेयर हाउस होता है,
फिर इसके साथ साथ आपका एक सॉर्ट सेंटर होता है, जहां आपकी चीज़ें या तो वेयरहाउस से सॉर्ट सेंटर से पे जाती हैं, या तो आपके सेलर्स अपने जो हब्स पे और स्टेशन पे जो चीज़ें ड्रॉप करते हैं वो आपके सॉर्ट सेंटर पे जाता है. सॉर्ट सेंटर सॉर्ट ऑफ फिगर्स आउट, यार ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज इफ इट्स गोइंग इन द सेम सिटी देन इट गेट्स फिल्टर्ड ऑलरेडी एट द हब्स. मगर अगर ये चीज़ जा रही है कराची से लाहौर, और लाहौर में फलाना फलाना गुलबर्ग पे कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीट पे जा रही है, वो हमारा सॉर्ट सेंटर उस हद तक वो एक्चुअली सॉर्ट कर देगा. तो जब वो चीज़ जाएगी हब पे, वो मास्टर बैग जो राइडर को जो ले जाएगा, इट्स गोना बी विद अ लॉट मोर सर्टेनिटी कि यार वो उसमें कोई गलती नहीं है. तो जब वो डिलीवरी के लिए जाएगा, वो एक तो अपनी डिलीवरी जल्दी से कंप्लीट कर सकता है, उसके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं. और इसमें बहुत ज़रूरी है ई कॉमर्स में कि आपका जो लीड टाइम है, इट हैज़ टू बी इम्पेकेबल. बिकॉज आज मैंने ऑर्डर किया, अब 6 दिन बाद अगर आप मुझे कुछ डिलीवर कर रहे हैं, तो भाई या तो मैंने ले लिया है, या तो मेरे पास पैसे जो थे वो ख़त्म हो गए, या तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है. तो आपकी कोशिश ये होती है कि जैसे ही कोई डिलीवर करे, जल्द से जल्द आप उनकी तरफ पहुंचा दें. तो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक श्योर कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप किया है, वो इसी मकसद से सेटअप किया है कि आप बस नहीं किसी ने ऑर्डर कर दिया तो हो गया आपका काम. अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, अब आपको जल्द से जल्द उनके पास पहुंचाना है. अगर वो खुश नहीं है तो आपको रिटर्न और रिफंड लेग पूरा खड़ा करना है. और पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो रिटर्न पे तो क्रिएट ही नहीं हुआ था. बिकॉज अगर आप कोई लिफाफा आता है आपका बैंक से, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे यार बैंक को वापस दे दो, आप ले लेंगे. कैश ऑन डिलीवरी डिडंट एग्जिस्ट, रिटर्न डिडंट एग्जिस्ट. तो अब वो पूरी चीज़ हमें क्रिएट करनी थी कि यार रिटर्न कैसे, रिटर्न जर्नी में क्या होगा. रिटर्न जर्नी के अंदर घुसे तो पता चला यार कभी कभार कस्टमर भी कुछ गलत करता है कि प्रोडक्ट निकाल लेता है, कभी कभार सेलर कुछ करता है, कभी कभार राइडर कुछ कर रहा है, कभी कभार आपके वेयरहाउस में कुछ मसला हो रहा है. हाउ डू यू फिक्स ऑल ऑफ दैट. अब कैश में हाउ डू यू डू reconciliation, हाउ डू यू इंश्योर कि अगर थेफ्ट होता है तो अब क्या करें. तो इट क्रिएटेड अ बंच ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में. और यही कोशिश आपकी ये होती थी कि अगर 100 ऑर्डर्स आएँ तो आपको 100 डिलीवर करने हैं सक्सेसफुली. इसमें आपको क्वालिटी पे भी काम करना है, इससे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो रिटर्न करेगा. अगर आपकी डिलीवरी स्लो होगी तो वो रिटर्न करेगा. अगर आप, तो हमने बहुत सारे हमने लॉन्च किया तो हमें पता चला यार राइडर बोलता था उसने कि वो घर पे पहुंच गया, मगर वो इनफैक्ट झूठ बोल रहा होता था. तो फिर हमने इंसेंटिव सिस्टम्स अपने खुद के चेंज किए, दूसरी 3PLs की कंपनीज की चेंज किए. और आई थिंक एक्चुअली ये जो हमने मेहनत की है, आई थिंक दिस वाज एक्चुअली वेरी एडवांटेजेस फॉर द इकोसिस्टम. आज अगर आप देखें, बहुत सारे जो brand.coms आ रहे हैं कि आप देखते हैं फ्रेग्रेंसेस की कंपनी शुरू हो गई हैं, स्किन केयर, क्लोथिंग कंपनीज, वो अगर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो आप वो नहीं कर पाते. आज जो लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू हुई, जो दराज भी जैसे वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, वो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर आप दराज पे आना चाहते हैं, ग्रेट, मगर आपको अपनी कुछ वेबसाइट शुरू करनी है, आप शुरू कर सकते हैं. इसलिए आपको पता है जो डिलीवरी वाला काम है, उसके लिए आपके पास एक सर्विस है दैट्स रिलायबल. मुझे याद है 2018 में हमारे साथ भी होता था कि अगर कैश ऑन डिलीवरी होती थी, पर कैश मतलब जब मिले तो मिले, तो आपको अपने खुद के पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी. आज वो नहीं होता है. इसलिए आज कंपटीशन है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है. आज कैश ऑन डिलीवरी के अलावा प्रीपेमेंट्स भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है. तो उसकी वजह से और कंपनीज और लोग घर पे बैठ के ये काम कर सकते हैं. वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट चला सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि यार ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, हमें इंस्टाग्राम पे KOLs इन्फ्लुएंसर्स वो क्या हैं. एंड इट्स like I said, you cannot stop this. You can delay it. Cash की जो penetration market में, if it's not there, it'll slow down, but it will happen. It will happen. मुझे ये बताएं कि जो आपके इस वक्त सेलर्स हैं, देर ऑल मतलब हर दफ़ा जब ऑर्डर आता है तो वो सेलर ही आपको डिलीवर करता है एंड यू आर बेसिकली द मिडिल लेयर, या ऐसा भी है कि सेलर्स का जो फ्रीक्वेंटली सेलिंग आइटम है वो फुलफिल दराज ही करे. सो अगेन इंटरनेशनली अमेज़ॉन का अगर हम देखते हैं तो देर आर दोस्त जो कि वेट करना होता है 4-5 दिन, वो सेलर जाएगा, पैक करेगा, देगा. बहुत सारे होते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, तो उन्होंने बड़े प्लेयर्स के खुद से अपनी वेयर हाउसिंग मैनेज की भी है. एंड सो आई एम क्यूरियस कि जो आपका लाहौर कराची का है, हाउ डज दैट सॉर्ट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग एंड what's that like? Yeah, so we were not super creative. We called it Fulfilled by Daraz. Right. And it's exactly that. कि अगर आप
अगर आप एक सेलर हैं जो बोलता है यार मुझे इसमें जो headache और मगजमारी है इसकी, आई डोंट वांट टू डील विद दैट, यू कैन पुट योर थिंग्स इन आवर वेयर हाउस। हम अब सबसे अलग अलग चार्जेस करते हैं, बट जो चीज़ें जल्दी बिक रही होती हैं इट्स मोर एडवांटेजेस फॉर, इसलिए पिकिंग, पैकिंग, सॉर्टिंग, हर चीज़। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी जल्दी हो जाती है। जब डिलीवरी जल्दी होती है, लाइक आई सेड, सक्सेस रेट बढ़ता है। सक्सेस रेट बढ़ता है तो यूर मोर लाइकली टू एक्चुअली गेट पेड फॉर द ऑर्डर यू हैड। तो अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जो हमारी एंड वी आल्सो प्ले दिस ऑन अ कैटेगरी, कि हमें पता है कि यार अगर आप कोई किचन ऑर्गेनाइजर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, इट्स नॉट मुझे फ़ौरन चाहिए। मगर ग्रोसरीज इज समथिंग दैट इज़ अ लॉट मोर कि भाई मुझे फ़ौरन चाहिए। ग्रोसरी ऑल्सो वेरी प्राइस सेंसिटिव, सो वी से कि इसमें वी कैन एक्चुअली सॉर्ट इट बेटर। हम डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली चीज़ें खरीद के कंज्यूमर के पास पहुंचा सकते हैं। हम शुरू में तो वी वर डूइंग सेम डे, अब हम we're inshallah we stopped it for some time and inshallah we'll be starting same day deliveries again, मगर वो हम तभी कर सकते हैं वहाँ जब हमारे वेयर हाउस में। उसके साथ साथ sellers, they can choose, like I said, to have it fulfilled by Daraz, जिसमें आपकी deliveries get sped up and they're able to get to the consumer very very quickly. And उसके अंदर you mentioned with very few human hands, right? So um, globally हमने देखा जब warehousing and fulfillment की बात आई कि उसके अंदर there's a lot of automation that's taken place now. एंड मोर देन ऑटोमेशन, चूंकि वो जो बात आती है ना कि ट्रस्ट वाला जो एलिमेंट आता है, आई विल गो डीपर इनटू ट्रस्ट राइट आफ्टर दिस एज वेल, बट बिकॉज दैट इज़ द सेंट्रल नोड जहाँ से एसेंशियली चीज़ पिक एंड पैक हो रही है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने एडिशनल वो चीज़ें डाल दी हैं कि यार आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, आपके पास जो आइटम आपका पैक हो रहा है वो वहाँ पर स्टोर हुआ हुआ है, दैट कैन बी बैक ट्रैक्ड। सो आई एम क्यूरियस कि इस वक्त जो आपके वेयर हाउस ऑपरेशन हैं, हाउ मच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड देयर टू ऑप्टिमाइज? Yeah, I think it's been warehousing I think there's still, I wouldn't say we're as advanced as some of the other places in the world from a warehousing perspective. Or actually, to be honest, अगर आप automation आप देखें supply chain में, you need it more on the sorting side than you need on the warehousing side. Warehousing is a lot more about having, the way your picking strategy is, where your products are placed. Uski hum sari, we do a lot of automation on that side. But where we have invested very heavily is on the sorting side. कि अगर product आता है फिर तो warehouse से sort center या कोई hub से sort center. So how do we most effectively make sure that it's going to the right hub that it has to get delivered, and the rider can pack it as quickly as possible to get the delivery done very very quickly. Warehousing, of course it's great to have that automation, but it's not as the ROI doesn't always make as much sense. Obviously अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो उनकी तो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा है ना, हमारे पास वो वाला डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ काफ़ी दफ़ा एक्चुअली वो जो रोबोट्स आप डाल रहे हैं इन लोड शेडिंग एनवायरनमेंट, वो शायद महंगे पड़ जाएंगे वर्सेस humans doing that job. Exactly. And you have to solve for the peaks, right? अगर जैसे sort में आई थिंक जब हमने डिसीजन लिया था वो जब लिया था कि एक हमारा 11 था, जब मैं और हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, हम दोनों बैठ के sorting खुद कर रहे थे sort center में. And you're like, yeah, this next year it's gonna be even tougher. Yeah. So it's like we would break something and then be like, यार हमें solve करना पड़ेगा. And जैसे even last mile, you don't need to automate it because ठीक है, आप अगर 4,000 बंदा है, आप 10,000 बंदा लगा सकते हैं इस पे. You can automate that, and it's like you said, it's cheaper in Pakistan. So you can say, यार ठीक है, मगर sort center में आप नहीं कर सकते because you have a limited amount of space, and if you need to sort 2 million packages and you have space for 100,000 packages, तो आप कैसे करेंगे? आपको इसका मतलब 20 दिन लगेंगे वो सॉर्ट करने में. दैट कैन नॉट हैपन इन अ प्लेस वेयर लोग एक्सपेक्ट करें कि भाई मैंने 11 पे ऑर्डर किया है, मुझे बहुत अच्छी एक डील मिली है कोई आइटम पे, मुझे फ़ौरन चाहिए. सो या मेक सेंस. Tell me about the trust aspect. So you mentioned ecosystem a few times, right? And I think to 2018 till date, a lot has changed for e-commerce in Pakistan. जब इस तरह की चीज़ पहली दफ़ा पाकिस्तान में आती है तो इट वाज ओनली लॉजिकल कि इसके अंदर जो है ना वो मसाइल आएंगे. एंड आई फील लाइक कि अ लॉट ऑफ द क्रिटिसिज्म अगर कभी मिला है किसी भी ई कॉमर्स प्लेयर को, तो उसके अंदर पीपल डिड डिस्काउंट द फैक्ट कि यार देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेटफॉर्म एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक नई स्पेस खड़ी हो रही है अगेन इन अ लो ट्रस्ट सोसाइटी जहाँ पर हर बंदा उसको हैक करने की कोशिश करेगा. इट्स नॉट दैट दोज थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स व्हाट नीड्स टू बी सीन इज कि उसके फॉलो अप के ऊपर रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म्स क्या लग रहे हैं. ऑब्वियसली ऑल
sympathies to those people जो दरमियान में collateral damage बनते हैं, because उसके दौरान collateral damage होता है. Um, how has that sort of evolved? And I think platforms were at the worst end of it, because for the vast majority of consumer, they did not really understand that you are the intermediary layer. They, for them, even till date, I would say, जो भी नया consumer आ रहा है, अब तो आपके, I'm sure आपका एक evolutionary पूरा एक सिस्टम होगा कि यार आपको पता है ये नया बंदा आया है, इसने पहले 6 महीने क्या करना है, अगले 6 महीने क्या करना है, और 2 साल बाद क्या करना है, राइट? बिकॉज वो नया नया इवॉल्व कर रहा होता है. बट जनरली trust has been a major problem in Pakistan. And I feel like that is the number one thing. अगर अब जब हम स्केल की बात करें, बहुत सारे और मसाइल सॉल्व हो गए ना, लॉजिस्टिक्स सॉल्व हो गया बाय एंड लार्ज. पेमेंट्स का एक इशू था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि यार कैश ऑन डिलीवरी से हम डिजिटल पेमेंट्स पे चले जाएं. उसके ऊपर भी रेल्स बिछ चुकी हैं, बहुत अग्रेसिवली काम हो रहा है. आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर अ लॉट ऑफ दैट इररिस्पेक्टिव खुद से चेंज होना शुरू हो जाएगा. पैसों की पेमेंट के मसले थे जो आपने बात की, उसके ऊपर ऑलरेडी इकोसिस्टम में अब ऐसा हो चुका है कि आपको प्री पेमेंट मिल रही है, या आपको वो जैसे ही डिलीवरी हो गई तो आपने पेमेंट निकाल ली, उसके ऊपर मॉडल्स आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं जिसके अराउंड आप जो है वो अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं. ट्रस्ट स्टिल दो इज समथिंग जो कि इट्स नॉट एन ईजी प्रॉब्लम टू सॉल्व, बिकॉज व्हेन यू हैव tens of thousands of nodes and human hands participating in the infrastructure, वहाँ पर problems तो आएंगे. And उसमें I'm curious कि what have you guys done over time to solve for that problem? So that's a very good question, and I think इसमें पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो ट्रस्ट का मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और जो इश्यूज ऑनलाइन शॉपिंग में होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. As e-commerce has evolved in the world, this has been an ongoing and existing issue that platforms and sellers have had to circumvent. तो इसमें एक तो ये है कि हम हमारे my principal assumption is you're innocent until proven guilty. But then if you're guilty, you're not welcome to play in my playground. ठीक है, तो ये इसमें ये रूल्स हैं, आप आ सकते हैं, मगर अगर आपने रूल्स ब्रेक किए तो आप नहीं खेल सकते. हम you're not welcome here. तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप कस्टमर की तरफ भेजते हैं, आपने कस्टमर ने एक थर्मस येलो कलर का ऑर्डर किया, आपने कोई प्लास्टिक की बोतल भेज दी है, तो इसमें जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो एक तो आपको फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी. फिर आपका प्रोडक्ट जब क्यूसी में आएगा और वाकई में अगर ये हुआ है तो आपका प्रोडक्ट एक तो डीलिस्ट होगा. फिर आपका जब प्रोडक्ट डीलिस्ट होगा तो आपकी बूस्टिंग सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं. तो यू बेसिकली लाइक मैं एक दफ़ा बेच सकूँगा, एक दफ़ा में मेरा फ़ायदा हो गया तो हो गया, एंड देन दैट्स इट. और कस्टमर बता देगा कि यार ये तो ये इसने गलत किया था. मगर ऑब्वियसली ये नहीं होता है कि हर दफ़ा सेलर ही गलत काम करो, कस्टमर्स भी होते हैं जो करते हैं. तो हाउ डू यू फिगर आउट कि यार कस्टमर इस दफ़ा गलत है, सेलर, एंड दैट्स वेयर डेटा ऑल्सो कम्स इन. Again, you assume innocent until proven guilty, but then you start monitoring the data. कि अगर एक फलाना कस्टमर ये 100 ऑर्डर्स करता है और उसके 20% वो एक्सेप्ट करता है, 80% तो रिजेक्ट कर देता है, और वो ये करता फलाना वो, तो over time we start narrowing these things down and restricting, because it's not just an issue for sellers, it's also an issue for customers and vice versa. But there is no crystal ball. And there's no sort of, you don't know exactly where in the supply chain did this have an issue. You learn over time, your models learn over time, and you start focusing on what is the most likely situation. And in this, of course, you have to keep in mind कि आपको एक return journey बहुत आसान करनी है. तो आप, for example, पाकिस्तान में I think there's 15 cities जहाँ आप अगर return करते हैं अपना product, एक तो हम 14 डे हमारी रिटर्न पॉलिसी है, मगर अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो हमारा राइडर हीरो वो आपके घर पे आपका प्रोडक्ट उठाएगा. और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी दी हुई है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब हमारे वेयर हाउस में जाके भी उसकी क्यूसी नहीं होगी, वो हमारे जो लोकल है उस पर ही हो जाएगी. और अगर आपके इनफैक्ट प्रोडक्ट आपका सही, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही है, वो उसी वक्त, अगर आपकी कैश है तो उसी वक्त आपके वॉलेट में डल जाएगा, अगर आपका कार्ड है तो उसी वक्त हम आपके कार्ड में डाल देंगे. तो
वो वो चीज़ें आपको आसान करना ज़रूरी। इनफैक्ट अगर आप दराज से ऑर्डर भी करेंगे तो हमने डब्बे भी लिखा हुआ है कि भाई आप रिटर्न करें। इफ़ यू नॉट हैप्पी रिटर्न इट, बिकॉज इट्स मच बेटर टू रिटर्न इट देन टू हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। अगर आप इफ़ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस यू भी मुझे आई डोंट वांट टू बाय अगेन। सो वो रिटर्न को आसान करना, वो रिटर्न जर्नी को टू सिंप्लीफाई, टू मेक श्योर कि वी वर्कड विद द बैंक्स टू मेक श्योर दैट द money comes to the consumers faster. We worked with the sellers to make sure. In fact, हर महीने हमारे तकरीबन 5,000 sellers फ्री में हम एजुकेट करते हैं थ्रू दराज यूनिवर्सिटी। उसमें अगर आप एक प्रोडक्ट अगर आप या तो आपको ऑलमोस्ट लाइक डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पॉइंट्स you get a certain number of points, then you have to take courses and modules on Daraz University to start getting relisted again on Daraz. वरना we don't let you come back on Daraz. And there's times अगर आप बार बार कुछ करें तो हम परमानेंटली आपको डीलिस्ट कर देंगे कि आप भाई आप ये you're not welcome to play in the playground. अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप जो कस्टमर को जो बोल रहे हैं वो देंगे, आप कस्टमर एक्सपीरियंस को ऑनर करेंगे, आप प्राइसिंग को ऑनर करेंगे, जो हम बना रहे हैं उसकी बेसिस पे आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ join with us. But if you don't want to play by our rules, then you're not welcome to play. आपका जो आपने 500 समथिंग सिटीज़ बोला, सिटी टाउन्स XYZ, आई थिंक जब आप एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है जब आप एक्चुअल में ई कॉमर्स का काम करते हैं ना, तो आपको ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ पाकिस्तान का ट्रूली आइडिया होता है। आई रिमेंबर मैं हर दफ़ा ई कॉमर्स वालों से मिसाल देता हूँ, बट दैट्स बेसिकली माई एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली मैं उसी से निकालता हूँ। बट आई एक्चुअली डिड अ स्मॉल ई कॉमर्स business between 2018 and 2021, taught me a lot about the industry, about the problems, about all of those things, and made me good money as well at the time. So मैं उसको क्यों डिनाई करूँ, बट उस दौरान मैंने देखा कि यार क्या क्या नामों से जगहें थी और वहाँ पे कैसे कैसे रैंडमली ऑर्डर आ रहा था। राइट, अफगान बॉर्डर पे ऑर्डर आ रहा है, कोई रैंडो कोई टाउन है, फोर्ट दिस कौन सा दादन खान टाइप्स। तो I was very fascinated because we were just selling on like Instagram, and my wife is an influencer. You actually met her in Sri Lanka, by the way, a Yes, couple of yes, years yes, ago. yes, 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 I did. Yes. तो वो she would just use influencer marketing. I'd be surprised यार यहाँ पे लोग रह रहे हैं और वो उसको Instagram में फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे समझ आई कि यार पाकिस्तान में डिजिटल का कितना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुका है, इम्पैक्ट हो चुका है। बट उसी के साथ आपको रियलाइज़ होता है कि यार इसका लॉजिस्टिक्स कहने को आसान है, बट ये जो लिस्ट आई है मेरे सामने, और इस लिस्ट में अब अगर रियलिस्टिकली मैं सोचूं तो देयर हैज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग एट द लास्ट माइल। उसके सॉर्टिंग भी उसकी हो रही है, आपने उसको सारे को 500 डिफरेंट जगहों पे पहुंचाना है, पहुंचा के उस बंदे ने वहाँ पे करना है, और उस बंदा वो KLI का बंदा नहीं है, वो बंदा किसी गांव में बैठा हुआ है, तो आपने उसको ट्रेन भी करना है, आपने इंश्योर करना है कि वो कोई 2 नंबरी भी ना करे, और वहाँ पर वो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी मैनेज करे। पहला तो आई एम क्यूरियस, are all of these territories completely managed by Daraz now? क्योंकि उसमें अकाउंटिंग भी एक है ना, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिसमें शायद 2 महीने में 2 ऑर्डर्स जा रहे होंगे, लेकिन अब आपने तो सर्विस करना है बिकॉज आपने तो वही डेप्थ प्रोवाइड करनी है जो कि कोई और कर रहा है। तो आई एम क्यूरियस अबाउट हाउ दिस मॉडल वर्क्स, बिकॉज एक वो Yeah. न्यूज़ चैनल वाला मॉडल होता है कि KLI बड़े शहरों के अंदर आपका रिपोर्टर है, और फिर वहाँ पर फ्री लांसर्स हैं जो कि आपके साथ भी काम कर रहे हैं, 4 और एजेंसी जिसने पहले भेज दिया। राइट, सो क्या ऐसा हो रहा है कि कोई गांव है जहाँ पर 5 डिफरेंट कंपनीज के लिए एक ही राइडर है, वो जो कहता है यार बस मुझे दे देना, मैं तुम पहुँचा दूंगा, एंड वी कैन एक्चुअली हैव अ डील, या हर जगह पे दराज ही नाउ एग्जिस्ट करता है? नहीं, इसमें आपने ये बहुत एक वैलिड सवाल भी है। इसमें ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी कहाँ है। और उस पर अगर हमें पता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसके 2 ऑप्शंस हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग 3PL कंपनीज हैं उनके पास ऑलरेडी वॉल्यूम है, वो उधर ऑपरेट कर सकते हैं, उनके पास चले जाएगा ये वॉल्यूम। या तो हमने एक चीज़ 4-5 साल पहले शुरू की थी कॉल लॉजिस्टिक्स मार्केट प्लेस, जहाँ अगर आपके पास आप रहते हैं शेखुपुरा में और आपके पास यू हैव सम मनी पुट असाइड, तो आप एक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वेयर वी विल गिव यू ऑल द टेक्नोलॉजी, वी विल गिव यू द वॉल्यूम। मगर आपने राइडर्स या हीरोज़ को मैनेज करना है, अपनी ट्रेनिंग हमारी तरीके और हमारे मुताबिक आपने उनको ट्रेन करना है, बट आप दूसरों की भी डिलीवरीज कर सकते हैं। बट वी नो कि यार हमारे पास इनफ वॉल्यूम उस जगह पे नहीं है दैट इट वुड मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन अ हब और अ स्टेशन एंड सेट अप एंटायर टीम देयर। So we know that you're already there, you know the people there, you can operate as an independent, almost like a franchise business there.
और उसके साथ साथ आप दराज के साथ साथ अलग कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ दीज थ्री मॉडल्स. एक तो ये कि दराज एक्सप्रेस के थ्रू जा सकता है, जो 3PL पार्टनर्स हैं हमारे, वी पार्टनर विद ऑल द डिलीवरी कंपनीज इन पाकिस्तान. फिर उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स मार्केट प्लेस, जहाँ in select cities where the density may not be as much, उधर वो खुद एक बंदा he can start his own business and operate for Daraz and other companies. You're launching, I think this is very recent, 3 days ago की मेरे खबर आई थी. You're launching this sort of the Daraz Express now, opening it up to the public in terms of कि मैं अगर दराज पे नहीं भी लिस्टेड, मैं अगर एक बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं दराज का इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट? जी. Run me through what the thought behind that is, because in an extremely मेरी जिनको रिटेल वालों से बात हो रही थी तकरीबन 3-4 दिन पहले, और जिनको के साथ भी हुई, और दूसरी किसके साथ हुई, Unity? वल्लाह आलम, नहीं, एक और someone else also. But anyways, they mentioned कि इस वक्त 32 players हैं लॉजिस्टिक्स के जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं. और I mean it sounded crazy to me कि ये वो न्यूज़ चैनल वाला काम हो रहा है कि नेशनल न्यूज़ के 50 चैनल हैं, कितनी खबर निकल आएगी यार नेशनल, राइट? लाइक तो कितना ही लॉजिस्टिक्स का वो हो सकता है कि ये फ्रोयो तो नहीं हो रहा कि एवरी पर्सन इज गेटिंग इनटू इट, एंड सो किसी की भी यूनिट इकोनॉमिक्स फिर मैनेज नहीं हो रही बिकॉज वो द वॉल्यूम गेट्स डिवाइडेड. एंड सो आई एम क्यूरियस व्हाट कंपेल्ड दिस डिसीजन to get into last mile as a separate independent entity essentially, and separately जो मैंने आखिरी बात बोली, run me through the unit economics of this industry, because जो मुझे numbers नज़र आ रहे हैं और जो मैं दुनिया में देखता हूँ, चाहे मैं दुबई में देखूँ या मैं यूएस में देखूँ, इतने थिन मार्जिन्स कि या तो साइट वाला बंदा देखेगा वो कहेगा या तो ये बर्न हो रहा है कैश और ये क्रेजी है, या वो ये देखेगा कि यार ये अनसस्टेनेबल है, बिकॉज स्टेक होल्डर्स हैव टू मेक अ विन लॉन्ग टर्म. क्योंकि भी आपने थोड़ी देर पहले बात की, आपने रिटर्न्स की बात की, आपने बहुत सारी कस्टमर एक्सपीरियंसेस की बात की. पाकिस्तान में लोग कस्टमर एक्सपीरियंस की बहुत बात करते हैं. यूएस में मैं चीज़ें वापस कर सकता हूँ, मुझे जो है ना चीज़ ख़राब होती है फ़ौरन से रिप्लेसमेंट मिल जाती है, ये होता है. यार यूएस में मार्जिन कॉल तो देखो ना, 10 रुपए की चीज़ वो 100 रुपए की बेचते हैं. वो अगर एक बंदे को रिटर्न एम ही फेंक देंगे या वो फ्री में फेंक देंगे, यार ये ले भाई तेरे लिए कोई मसला नहीं है, वो उस पर भी मार्जिन कमा रही है, राइट? यहाँ पर वो 10 रुपए की चीज़ मुश्किल 10.5 रुपए की बेच रहे हैं, क्योंकि इट्स एन एक्सट्रीमली कंपेरेटिव एनवायरनमेंट, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक अ बक, एंड सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट. क्योंकि मैं जितने भी लास्ट माइल से बात कर रहा हूँ ना, एवरीबडी टॉक्स अबाउट हम ये कर रहे हैं ट्रस्ट बचाने के लिए, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, हर पार्टी के साथ किसी ना किसी को ज़रूर मसला है, राइट? एंड मेरा थीसिस ये कहता है कि इट्स बिकॉज ऑफ द रेस टू द बॉटम जो कि टेल्को ने किया था अपने साथ, जो कि अब ये इंडस्ट्री कर रही है प्राइसेस वाइज, कि जब मैं 2018-19 में बेच रहा था तो 200 रुपया मुझे ऑन एवरेज एक पार्सल का जा रहा था. आज मैं सुन रहा हूँ पेट्रोल की प्राइस 3 गुना हो चुकी है, डॉलर दुगना हो चुका है, इन्फ्लेशन जो है वो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कोई 40-50% हो चुकी है, और उस सब में लास्ट माइल डिलीवरी की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये से पता नहीं 120 रुपये पे पहुंची. हाउ इज द इकोनॉमिक्स वर्किंग? टेल मी अ बिट अबाउट दैट. It's a very good question. I'll tell you, एक तो हम why are we doing it, and then I'll get into the economics of it. And my thesis is similar to yours, that you cannot have 32 players that are all going to do well. This is a game of scale. And why it's a game of scale is because it's like news channels में आपका जो capex है, starting capex, it's not as insane. इसमें आपको अगर आपको एक शुरू करना है, in order to do it properly, you can start with variable expense. क्या है, मैंने एक जगह लिस्ट ले ली, मैं सॉर्ट करूँगा और यहाँ से मैं निकालूंगा, मेरे राइडर्स मैंने रखे हुए, and that's it. अगर आपको स्केल पे करना है तो it requires a lot of money. Then you think about Daraz, कि यार हमने ये तो इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, हमारा वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली आता है, तो मुझे किसी और को अगर ऐड करना है तो मेरी जो वेरिएबल एक्सपेंस, मैं बस वेरिएबल एक्सपेंस पे प्ले कर रहा हूँ, मेरी फिक्स एक्सपेंस तो सारी हुई भी है, और मेरी वेरिएबल एक्सपेंस जितनी मैं और वॉल्यूम डालूंगा और कम होती रहेगी. तो why should I not do it to also lower my variable expense for my entire platform, right? So I can actually take my service and offer it for more cost effective than someone else to others,
and thereby also make my variable expense cheaper for myself. So, isme, there's not going to be 32 players forever, and you've seen this as well. Players I, players guy, players I, players guy. Because you're right, एक अब बहुत aggressively, बहुत competitive environment में आप चले जाते हैं, और इसमें it's not only a razor thin margin business, it's a very thankless job. मतलब कभी आप, जैसे आपने कहा कि कमेंट सेक्शन में सब कंप्लेन कर रहे होते हैं, आपको बहुत कम मिलेगा कि कोई बोलेगा यार मतलब कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी जल्दी उन्होंने डिलीवरी कर दी. और ये आपको दुनिया भर में कहीं नहीं होगा. एवरीवन इज ऑलवेज अपसेट कि यार और जल्दी क्यों नहीं ला सकते आप. तो it's a very thankless job, very thin margin job. So in order to make it work, you have to have immense amount of volume, and you need to have immense amount of density. Density is there from a country perspective, but density is not there in terms of e-commerce. तो वो जैसे हमारी वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारी ई कॉमर्स एज एन इंडस्ट्री, इसमें दराज, बाकी जो ब्रांड्स हैं, वो सब मिल मिला के जैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती है, योर कॉस्ट पर ऑर्डर स्टार्ट्स ड्राइविंग डाउन वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली. मैं आई रिमेंबर जब मैं कनाडा में होता था, तो एक जो अमेजोन का राइडर था, वो 1 घंटे के अंदर वो आई थिंक 16 या 20 पैकेजेस ड्रॉप कर देता था. अब वो क्यों करता है? वो इसलिए कोई बिल्डिंग में जाता है और 8 पैकेजेस एक कॉन्शियर्स पे आपने छोड़ने हैं, दैट्स इट. अब वही बंदा अगर पाकिस्तान आएगा, देयर इज नॉट दैट मच डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स. देयर इज डेंसिटी इन पीपल बट नॉट इन कॉमर्स येट. तो वो करने के लिए ही डजंट हैव द इकोनॉमिक्स, विल नॉट मेक सेंस, एंड सो आई थिंक एज द डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड सो यू वांट टू ऐड डेंसिटी. सो वी से कि यार ठीक है, अब दराज का वॉल्यूम में और भी डेंसिटी ऐड करेंगे तो हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स और भी कम होंगी और भी बेहतर होंगी. और हमने सारा कैपेक्स ऑलरेडी किया हुआ है. हमारी सोर्ट सेंटर लाइक ऐसे 2 मिलियन पैकेजेस हैंडल कर सकता है, जहाँ देयर इज नो वन एल्स इन द कंट्री दैट कैन डू दैट, राइट, इन एन ऑटोमेटेड वे. तो अगर उनको स्केल करना है, they need to actually start spending more variable expense, whereas mine is a fixed expense, and I actually start becoming cheaper and cheaper, and then I can pass those savings on to the consumer. So I think alhamdulillah, जब हमने पैसा खर्च किया, it was a good time to spend it. Money was more free than it is today. और हमने वो दराज को एक एडवांटेज देने के लिए from a delivery perspective किया था. But उसका advantage should be passed on to the entire ecosystem, because we can do it in a more cost effective way, and not only cost effective, with a better success rate. Because हमने देखा हुआ है कि यार अब एक कस्टमर अगर एक कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. हमने पूरा हमारा इंसेंटिव सिस्टम चेंज किया ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. Everything we have done to fine tune our own deliveries, and now we're saying we're going to take that exact same thing and give it to you at a cost effective rate. You would be silly not to take it, and we would be silly not to do it. What about the economics? The second part of the question. Yeah, so the economics, like I said, that's where Daraz has an advantage, because, like I said, we've done the capex behind it. अगर आपको आज कैपेक्स खर्च करना पड़ता, फिर आपको वॉल्यूम खुद ढूंढनी है. हमारे पास वॉल्यूम भी है और हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आई कैन डू इट चीपर. आई डोंट नीड टू डू इट. माई कॉस्ट per package will be lower than profitable तरीके से, while managing the service. मुझे ये बताएं कि and it's surprising to me कि it hasn't created the chatter that I expected to create, और क्योंकि लोगों को शायद impact उसका भी समझ नहीं आ रहा. But last mile delivery is just one aspect, right? Now there are players जो कि बहुत सारी added range of services दे रहे हैं. फिनटेक भी है वो एक तरह से, जिसमें वो आपको आपकी, और a lot of these people, particularly like someone like दराज है, और उसके अंदर अगेन वही वाली बात है कि कैश फ्लो इज किंग. ब्रांड्स का फ़र्क सीन होता है. ब्रांड्स का ये है कि उसमें साइकिल में फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम आपके पास होता है. एटलीस्ट जिस तरह मैं अपनी वी वर सेलिंग डायरीज, तो साइकिल होता था हर 3 महीने बाद चाहिए होता था. हमें 2 हफ्ते बाद मिले, 3 हफ्ते बाद मिले, वी डिडंट रियली केयर, बारिंग द लास्ट कपल ऑफ वीक्स जब हमने एक्चुअली अगले उसका करना होता था. लेकिन जिन लोगों ने बेचना है, माल उठाना है, उसको बेचना है, उस पैसे को वापस लेना है, वापस करना है, तो उनके लिए कैश फ्लो इज एवरीथिंग. एंड सो दैट्स वेयर a lot of players have started coming in, and they've started to offer you services around that as well, and so have created sort of a fintech component. फिर उसके on top of that, अब data is now increasingly becoming important, where yes, step 1 मैं बहुत अच्छे से deliver कर सकता हूँ, step 2 मैं जो है वो पैसा आपका cash flow निकाल सकता हूँ, step 3 is that within that delivery ecosystem I can actually reduce the returns, I can actually help you beforehand
to identify okay, what is a potentially problematic customer. And so I can actually help you make your business more efficient in terms of the delivery and logistics aspect, right? जब आप इसको ओपन एंड कर रहे हैं तो इज इट जस्ट द डिलीवरी और आर यू देन एडिंग ए रेंज ऑफ सर्विसेज? बिकॉज आई एम क्वाइट सर्टन कि दराज के पास ये बहुत सारा काम हो रहा होगा अपने लिए इंटरनली. And so are people going to be leveraging on that existing analytics that have been happening for Daraz? क्योंकि वो उसमें certainly then it makes a lot of sense as well कि यार मेरे पास 2 million या XYZ जो customers हैं उनके ऊपर जो trained data है वही मेरे पैकेज के लिए भी यूटिलाइज हो रहा होगा and therefore the quality will be much higher. Yeah, absolutely. Look, that's exactly where I think Daraz actually has a big advantage. And like you highlighted, cash is king, especially in a country where the cost of capital is very, very high. और जनरली जो लोग खरीदते हैं वो जब पैसे मिलते हैं तो फिर आगे जाके खरीदते हैं. तो इसमें we're not doing yet prepaying for to the seller like some companies are doing, but generally हम अपनी तरफ से भी we've always had a ask from everyone that हमें 1-2 दिन में पैसे चाहिए हैं. So we do the exact same thing for our sellers, so for companies that want to work with us. और उसके साथ साथ जो हमारे sellers हैं, they get paid every single week. But in fact, we're working towards soon they'll have the ability to withdraw it whenever they wish. जहाँ उनके पैसे accumulate हो जाते हैं, वो बोलेंगे they'll click a button and the money will go right into their bank account to make it easier for them as well. And then the idea, like you said, is to give these services that Daraz has to the customers that use Daraz Express as deliveries. अगर हमें पता है कि if for example, अभी अगर आप एक फ़ोन ऑर्डर करते हैं, अगर आपने फ़ोन ऑर्डर किया और आपने 20% से ज़्यादा आपका रिजेक्शन था, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी करने ही नहीं देंगे. So we haven't built the link 100% yet, if I'm going to be honest, but that is the goal, is to जो दराज की जो बेनिफिट्स हैं, जो हमने डेटा के थ्रू देखा हुआ है कि कौन सा कस्टमर को हमें कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करनी चाहिए, किसको हमें डिजिटल पेमेंट ऑफर करनी चाहिए, किसको हमें पता है कि यार ये कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड नहीं होगा. वो सारी चीज़ें फिर दराज एक्सप्रेस will be able to actually offer to its customers. And like I said, Daraz, because it's the biggest e-commerce player in the country, हमारे पास day one से सारी information हमारे पास है कि how do you make sure that successful delivery is done. And in fact, right now, अगर आप देखें तो जो दराज की और for Daraz was a client and others are a client, अभी success rate सबकी same है. So it's not that Daraz, जो बाकी जो clients हैं उनकी success rate कम है versus Daraz. All of those they all go into the same system. The system is agnostic कि यार ये Daraz का package है किसी और का है. Because that also cannot happen, right? हमारा volume बहुत बढ़ गया और हम बोल रहे हैं भाई आप अपने packages आपके packages हम नहीं deliver करेंगे. भाई that's not the way this works. Everyone gets into the same pool. वही उस तरीके से sorting होगी, उस तरीके से last mile hubs और last mile riders के पास जाके deliver होगी. जो अली बाबा की आपकी partnership ownership है, does that mean you get a lot of technology transfer from there as well, or is this all indigenous to Pakistan what you have? No, absolutely. We get a lot of technology from them. In our front end, like our app, मगर हमारा पूरा जो warehouse management system है, हमारा जो सारा last mile का system है, उसमें not only the technology but also the pitfalls that they have made, and then how do we avoid some of the mistakes that they have made when we are doing it. इस वक्त आप लोगों की जो पेमेंट्स हैं, do you have a number to how much of that is cash on delivery and how much of that has now started to go towards prepaid or digital payment? And इसको एक्चुअली मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करूँगा. मैं दुबई में मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि डिजिटल पेमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन प्रीपेड. वो अब ये भी होना शुरू हो गया है कि यार कैश ऑन डिलीवरी के बजाय डिजिटल ऑन डिलीवरी. एंड सो दैट अलाउज फॉर के मुझे एक्चुअली राइडर के हैंड में कैश मैनेजमेंट नहीं डालनी पड़ती. इनफैक्ट वो रीराउट होके पीछे से इट्स डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ड्रॉप हो रही है वट एवर. एंड आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज अ गुड middle ground between allowing for that trust to be built but also
making the entire ecosystem more efficient. The reason why I say this is because पाकिस्तान में मुझे अभी तक वो नहीं मिला, क्योंकि अभी तक very recently I ordered a bunch of stuff and वो हो ही रहा था, राइडर्स आ रहे थे इंक्लूडिंग दराज बाय द वे, जिसके जो जब आया और मेरे पास आई जस्ट डोंट डू कैश. आई हैव हैड लाइक अ क्रेडिट कार्ड सिंस आई वाज इन 5th Same grade. माय problem. फादर वाज अ बैंकर. उन्होंने मुझे पहले से जो है ना वो डिजिटाइज किया हुआ था. तो जब भी वो आता था तो मैं हमेशा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल माई ड्राइवर वुड से कि भाई वो ऑर्डर आया, इतने पैसे हैं, क्या सीन है. मैं उसको कहता है मेरे पास तो नहीं है, तेरे पास है. वो कहता नहीं है. तो मैं कहता यार उसे पूछ ज़रा ईजी पैसा का सीन है. वो लिटरली हर राइडर जो है वो ईजी पैसा, अपना लोकल ईजी पैसा करता था. फिर उसके ऊपर वो 100-150 रुपया ऊपर से ले लेता था कि यार इसकी पैसे निकालने की फ़ीस होगी. एंड इट वुड ऑलवेज बॉदर मी कि यार वाई डज ही नॉट हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसमें मैं इसके अकाउंट में ना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में करूँ. कोई कोड आए मेरे पास एक्सेस में, उससे वेरीफाई करूँ, ऑथेंटिकेट कराऊँ और वो काम चल जाए. सो पहला तो मुझे ये बताएं कि हाउ मच ऑफ करंट पेमेंट्स आर प्रीपेड एंड हाउ मच ऑफ देम आर कैश ऑन डिलीवरी, एंड देन डिजिटल ऑन डिलीवरी के आपके क्या प्लान्स हैं, या इज दैट ऑलरेडी रोल्ड आउट एंड व्हाट्स हैपनिंग देयर? Yeah, yeah. So I think before that, it's even more important to understand कि why does digital payments matter for e-commerce? And the reason it matters for e-commerce is that वही जो प्रॉब्लम आपने जो बोला कि यार आपके घर पे कोई आता था और कैश मांगता था, आपके पास दो ऑप्शन थे कि आपके ड्राइवर से पूछें इजी पैसा करें, यहाँ से बोलें यार कल आ जाना, मैं कल कैश दे दूंगा. और वो कल आ जाना बोलना बहुत आसान है, मगर इसमें जो रिटर्न लेके वो हब पे जाता है, रीसोर्ट होता है, उसमें सारी कॉस्ट बढ़ते हैं. वो कॉस्ट इवेंचुअली किसी ना किसी को तो देने. तो इट्स वो जब फेल डिलीवरीज होती हैं तो उससे सेलर की कॉस्ट बढ़ती है, हमारी कॉस्ट बढ़ती है, कस्टमर को इवेंचुअली कॉस्ट बढ़ती है, एंड देन इट मेक्स द प्राइसिंग अनकम्पेरेटिव. और फिर बंदा बोलता है ये चीज़ ज़्यादा महंगी है ई कॉमर्स में, मैं क्यों ना जाके कहीं और से लूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी रिड्यूस द कॉस्ट बर्डन टू कंज्यूमर्स. तो दैट्स वाई डिजिटल पेमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो तकरीबन अभी भी 80% जो ऑर्डर्स हैं वो अभी भी कैश ऑन डिलीवरी पे हैं. 65% of the value, so 35% of the value is on cards, and 20% of the number of orders is on not just cards, call cards, wallets, etc. और इसमें हमारी कोशिश यही होती है that we incentivize consumers to start getting onto digital payments. So जैसे अभी 11/11 आ रहा है तो every bank is partnering with Daraz to give special discounts. हम एजुकेशन करते हैं बैंक्स के साथ. आपके कोई भी बैंक होगा आपको SMS भेजेगा या पुश नोटिफिकेशन भेजेगा कि you can use your card on Daraz and e-commerce, blah 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 blah. And the idea is to teach consumers कि यार it's safe to use it online. इसमें there's a lot of things that we've had to do. अभी पहले for example banks एक वक्त था कि अगर आप एक चीज़ रिटर्न करेंगे तो रिफंड में 45 दिन लग जाएंगे. मतलब भाई किस दुनिया में हम रह रहे हैं कि आप क्यों यूज़ करेंगे डिजिटल पेमेंट? अगर आपको पता है कि यार मैंने एक फ्रिज ले लिया है 1 लाख 1.5 लाख रुपए का और 45 दिन मेरे पास पैसे कहीं फंसे हुए, you wouldn't do it. So you have to make the journey of cash and digital payment as easy and as seamless. You also have to make the cost as seamless. अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूँ, आप आके जाके किसी और को 100 रुपए देते हैं, एंड में 100 रुपए ही बचेंगे. मगर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करता हूँ, तो then through the taxes and the fees, it you don't have 100 rupees left. So that's also very important from a infrastructure taxation perspective that we incentivize digital payments. So for example, Rast aaya hai, which creates it's because it's removed that cost issue between digital payments. So now even everyone is incentivized कि यार मुझे 2.5-3% मुझे किसी और को नहीं देना है, मैं क्यों दूं कोई गेटवे को 2.5-3% जब मेरा मार्जिन ही 5 है, आप क्यों ले रहे हैं 2.5-3%? तो इसमें जब ये रास्ता है which has eliminated some of those costs, it makes more and more people will be incentivized कि यार मुझे अडॉप्ट करना है कि मुझे कैश मुझे पेमेंट पहले मिल जाएगी, सक्सेसफुली डिलीवर भी हो जाएगा और मुझे कॉस्ट भी इसमें इतनी नहीं लगेगी. तो it's this will help in sort of the adoption of digital payments and getting people away from cash more and more. Sorry, आपका एक और भी there was another component to your question. Cash digital on delivery. जी. So now, in fact, तकरीबन 1.5 महीने से we started offering that. And the way this works is आपकी अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी की है तो राइडर आएगा, उससे 1 घंटे पहले आपको एक पुश नोटिफिकेशन जाएगी और आपको पुश नोटिफिकेशन में ये होगा कि यार अगर आप डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं तो क्लिक दिस बटन एंड इट विल टेक यू टू द ऐप. तो एक्चुअली जो आपने इशू आइडेंटिफाई किया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए इसमें आपको इवन इफ यू डू टैप ऑन पे you need mobile phones that can accommodate tap on pay.
every rider in Hero does not have a phone that can accommodate tap on pay. Because most of them are operating in the very, very cheap smartphones, जहाँ सिर्फ आपकी basic apps चल रहे हैं. So then we were like, yeah, अगर infrastructure का issue है, that means अगर infrastructure हमें देनी है तो that'll be very expensive. फिर हजारों riders को फिर आप scale करते हैं, हजारों को कैसे दें, फिर what are you going to do with all this equipment? So you need to find a way that is actually scalable. So the most scalable way for Daraz is that just आप click करेंगे push notification पे, it'll take you to the app, and then you can choose कि आपको कार्ड से करना है, easy पैसा करना है, आपको whatever digital payment you want to do, you can do it. So it but it still gives you that comfort. In fact, not and you can do it up to the point कि rider आपके doorstep पे आ जाए और आप इसके सामने भी कर सकते हैं कि वो बोले कि भाई आप अभी भी पेमेंट डिजिटली कर सकते हैं. And like you said, the idea of that, इसको जो generally एक lack of trust होता है कि ये प्रोडक्ट आएगा कैसा होगा फलाना, आपको वो थोड़ा एक दफ़ा ओवरकम करने के लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप ट्राई करें कि आप digital, and then once you try it with your card, I mean, like you said, you only use your cards, and I do too, because मेरे लिए इतना आसान होता है कि चौकीदार के साथ छोड़ दें, अगर चौकीदार नहीं है तो पड़ोसी के साथ छोड़ दें, तो बट अगर मैं कैश पे रिलाई करता तो मैं भाई कैश तो मेरे पास नहीं है अभी, या तो मैं घर से बाहर हूँ, मैं आधा घंटा वेट करने रेडी बोल के भाई मैं तो नहीं वेट कर रहा. So you can circumvent a lot of this through digital payments. ग्लोबली ना एक टाइम के ऊपर जब द Amazons ऑफ द वर्ल्ड बिकेम ह्यूज, तो एक थॉट ये थी कि यार इस तरह के इट्स अ लास्ट मैन स्टैंडिंग, वन पर्सन टू रूल देम ऑल, वन कंपनी टू रूल देम ऑल वाली सिचुएशन सीमिंगली लग रही थी, जिसमें वाकई ऐसा था. और अगर आप यूएस जाएं तो वहाँ पे अमेज़ॉन का लिटरली यही वाला सीन है कि वो उनकी गाड़ियाँ अपनी, उनका वो, मैं अगर कभी वॉक कर रहा हूँ ना तो मुझे आधे घंटे के अंदर 10 अमेज़ॉन की गाड़ियाँ नज़र आती हैं मुख्तलिफ, क्योंकि द एंटायर इकोनॉमी पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड हैज़ बिकम एक्सट्रीमली ई कॉमर्स ड्रिवन. स्टोर्स वगैरह जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, मैं किया भी हूँ तो खाली पड़े हुए हैं, जल्दी बंद हो रहे हैं. ई कॉमर्स इज़ सो कन्वीनियंट एंड काफ़ी दफ़ा सस्ता भी होता है जो आपका स्टैंडर्ड वो है. सो बट ओवर टाइम व्हाट वी सॉ वाज कि वो जो वन कंपनी थी वो चूंकि इतना ज़्यादा डेप्थ उसने बढ़ा दी अपनी सर्विस ऑफरिंग के अंदर, अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर, कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो गया कस्टमर के लिए, राइट. वो उसके लिए वो डिसीजन फटीग होना शुरू हो गया, उसको होना शुरू हो गया कि यार मैं यहाँ पर जाता हूँ, 50,000 ऑप्शन होती हैं, आई डोंट वांट दोज ऑप्शंस. एंड सो देन वी सॉ कि बहुत सारी कंपनीज सॉर्ट ऑफ क्लॉड देयर वे बैक, दी वॉलमार्ट्स एंड दिस एंड दैट एक टाइम के ऊपर जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे तो लग रहा था कि यार ये मजाक कर रहे हैं, ये तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. बट वो होना ये शुरू हुआ कि यू बिगैन टू आइदर सी क्यूरेटेड मार्केट प्लेसेस, जहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि व्हाट, लाइक विल गिव यू, वी अंडरस्टैंड यू, सो हम एक पर्टिकुलर कस्टमर को उसके रेलिवेंट सबसे एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीज़ आपको दे देंगे. या मैनेज्ड मार्केट प्लेसेस जिसमें हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्रांड्स के अराउंड आपको वो मिलेगा. सो एटलीस्ट आई डोंट हैव टू, देर आर सर्टन थिंग्स जिसके अंदर मैं आई एम रेडी टू टेक द रिस्क कि यार जेनेरिक चीज़ आ रही है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, रिव्यूज़ पढ़ लेता हूँ. देर आर सर्टन थिंग्स जो मुझे पता है यार एक पर्टिकुलर चीज़ है, मुझे वो, मैं मैनेज मार्केट प्लेस के पास जाता हूँ, जो कि माई अंडरस्टैंडिंग इज दराज मॉल वाज दैट फॉर यू गाइज, वेयर कि यार ऑथराइज डीलर मुझे ये चीज़ बेच रहा है. And so then at this point in time, the narrative has shifted quite a lot. It has become in many ways a competitive space. And Pakistan में भी अब हम देख रहे हैं कि there are other players now जो कि मोबाइल फ़ोन कैटेगरीज के अंदर, टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर, फैशन कैटेगरी के अंदर अब मैनेज मार्केट प्लेसेस और नीश ड्रिवन उसमें आना शुरू हो गए. How do you see that competitive environment being built? आप लोग अपने आप को किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं टू make do with that reality? And additionally, जब आप जिस तरह फॉर एग्जांपल अब आप जाकर वो कर रहे हैं ना, एंड मैं इसमें डायरेक्ट नाम भी लेता हूँ कि लाम जिस तरह है, लाम ने अपना एक फैशन मार्केट प्लेस बनाया, उस फैशन मार्केट प्लेस के पीछे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली. अब वो उस टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर रहे हैं, ओपन सोर्स नहीं कर रहे बट एज अ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट. आपने लॉजिस्टिक्स बनाया, आप लॉजिस्टिक्स को तो कर रहे हैं, बट क्या आप टेक्नोलॉजी को भी पोटेंशियली आने वाले वक्त में इस तरीके से प्रोडक्टाइज कर सकते हैं? एंड देन सेपरेटली, बिकॉज दराज इज नाउ द लार्जेस्ट ecosystem of local products or local market, do you think you will go into potentially exports
क्योंकि हमें पता है एक डायस्पोरा मार्केट एग्जिस्ट करती है, हमें पता है दुनिया की एक मार्केट एग्जिस्ट करती है। मैं डायस्पोरा कभी नहीं कहूँगा, मुझे लगता है हम डायस्पोरा का कह के ना सिर्फ अपने आप को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं महदूद रखते हैं। इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर टैरिफ्स बन रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग अप एंड डाउन, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज सडनली इमर्ज कर जाती हैं, जहाँ पे competitiveness सडनली इमर्ज कर जाती है, और वहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विल डिफाइन वेदर अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? सो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपने लोकल दुनिया के लिए, लोकल पाकिस्तान के लिए कर दिया, क्या दराज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली भी इनेबल करेगा एट सम पॉइंट इन टाइम फॉर द पाकिस्तानी कंज्यूमर? Yeah, I think इसमें there are a few things that you asked. I think एक तो ये है कि if you look at e-commerce in US and Asia, it's far more advanced than it is in Pakistan. In Pakistan, maybe it's 2.5% of retail, and that means there's a lot more space for entrants to come in and to be able to find the niches. And like you mentioned, there are niche players that operate in different verticals, and the way we're gearing up for that is that you have to identify, first and foremost, you have to admit that every category is bought very differently. जिस तरीके से आप ग्रोसरी खरीदते हैं उस तरीके से आप एक कुर्ता नहीं खरीदेंगे, उस तरीके से आप एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेंगे, उस तरीके से आप एक AC या टीवी नहीं खरीदेंगे, health and beauty नहीं खरीदेंगे. तो you have to become an expert in all of these categories. If you just sort of expect कि मैं प्रोडक्ट लगा दूंगा ऐप पे और वो बिकेगा, that's not the case. आपको मोबाइल कैटेगरी को बिल्कुल अलग तरीके से आपको मैनेज करना है वर्सेस आप फैशन को मैनेज करेंगे. फैशन ब्रांड्स को आपको बिल्कुल अलग तरीके से मैनेज करना है वर्सेस मार्केट प्लेस ऑफ लॉट्स ऑफ different sellers on fashion. So it's for as competition in different industries has emerged, we've really started digging a lot deeper into the categories. कि किस तरीके से हमें अलग-अलग categories को manage करना है और किस तरीके से we want to ensure that we have an advantage over players who emerge in the space. Whether they're on fashion, whether they're on electronics, how do we make sure that the consumer prefers buying on Daraz versus them? Isme, like you said, there's some consumers might prefer to go to a brand. And you can only have that when infrastructure has emerged. Like I mentioned earlier कि जब 3PL companies आई हैं उसकी वजह से बहुत सारे brands की खुद अपनी वेबसाइट उन्होंने शुरू कर दी है या उनने ये किया है कि they've used either Daraz and their own website. So I think this is it's created because of the infrastructure. It's created more opportunities for brands to emerge, and for players like us, it's really also taught us that यार अगर आपको इस category में जीतना है, so you have to be able to give that service to the customer. And you have to be able to deliver what they want in terms of not only customer experience, but in terms of pricing, in terms of assortment, in terms of the brands. Like I said, पिछले 60 दिन में हमने 150 जो brands लाए हैं, वो इसलिए because that's what the customer demanded. And it's not necessarily every brand is going to be a top tier A brand. There's tier B brands that sell better than some tier A brands. So it's what the consumer wants at the end of the day. Second question इसमें ये था कि beyond just sort of last mile delivery, are you hoping to productize other aspects of the business as well? Yeah, I don't think we will productize the technology part of it because, to be honest, I think like you mentioned, Lam sort of has created the technology themselves. In many ways, I think we have taken the technology from Alibaba and then manipulated it a little bit to be able to fit local needs. But where we are, like I said, where everyone should play in what they are excellent at. हमारी जो expertise है वो actually logistics है. We are excellent at it. So we should play in that space. And the technology is mostly really just been, like I said, adopted. So it's not something that we could or would monetize. And internationally, do you think you're going to get into an export infrastructure or enable export infrastructure? And again, context उसमें यही है कि the problem there is the cost of delivery, right? जिसका वो शीन मॉडल था, जिसका वो दूसरा मॉडल था, जिसको अब locally Lam and other players are trying to sort of figure out कि यार how do we sort of aggregate packages, scale को use करके, and how do we reduce the cost to enable the Pakistani seller to reach markets all over the world in the start, whether that is for your local
overseas Pakistani. But eventually, if you have the infrastructure there, तो technically speaking, fashion is fashion. मैं मेरे हिसाब से ना एक Yeah, बहुत बड़ी absolutely. कैटेगरी है जो पाकिस्तानी जिसको कर सकते हैं वो मुस्लिम फैशन है या modest fashion है. I feel like that's just popping up and it's huge. And उसको जितना अच्छा पाकिस्तान समझ सकता है और rapidly adopt कर सकता है because the infrastructure of textile that we have, we can take like it's a billions of dollars of market. Consumer बैठा है पूरा from all the way Indonesia से लेके तुर्की तक. But उसमें वो ये है कि we need that infrastructure and that has to happen from a big player. उसमें कोई startup नहीं कर सकता क्योंकि that's a cost intensive sort of economy of scale business. Do you think you'll ever be, क्योंकि आपके पास वो seller exist करता है आप उसको enable कर सकते हैं तो क्या आप उसको solve करने की तरफ जाएंगे? I think eventually हम जाएंगे. It's probably not going to happen in the next 18 to 24 months. मगर हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ eventually जाएं because इसमें देखें ना तो सिर्फ ऑब्वियसली मुस्लिम वेयर है मगर ऐसे भी कैटेगरीज हैं जहां पाकिस्तान एज अ कंट्री हैज अ कॉस्ट एडवांटेज. So actually, if you even compete versus China, you can deliver it to the consumer not only in Muslim countries but to South Asia for cheaper. अगर आप तौलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप सस्ते बना सकते हैं या बेडशीट सस्ते बना सकते हैं तो कंज्यूमर को नहीं परवाह होगी कि यार ये पाकिस्तान से आ रहा है या ये चाइना से आ रहा है या ये वियतनाम से आ रहा है. वो चाहेगा कि यार ये कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, क्वालिटी अच्छी है. तो आप एक्चुअली ना तो सिर्फ मुस्लिम वेयर जो पाकिस्तानी ब्रांड्स या फैशन बना रहे हैं मगर एज अ टेक्सटाइल एंड एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री यू कैन स्टार्ट केटरिंग टू कस्टमर्स आउटसाइड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल to consumers globally. So I think there's definitely an opportunity there. Isme, like I said, we will inshallah look into this in down the road, but to do it right now it's a bit of a distraction. That's why we haven't done it. We really need to crack Pakistan, and then inshallah with that we're going to go into to other countries too. That makes sense. मैं थोड़ा सा इसको wrap up की तरफ लेके जाऊंगा, but I'd be curious. You've mentioned quite a few times, and I know it's just right around the corner. Gara Gara is huge. It's something that you guys really championed and created, and now it's happening across the industry. कि उसके around बहुत सारी sales होती हैं, and it's the biggest consumer event in the country. पहला तो ये कि do you have any numbers over the last few years of again the volume or the impact that happens during this time? Yeah. Generally, when we do Gyara Gyara, we're hoping to do 10 to 20x of our daily volume, which from an operational perspective is a nightmare and very, very difficult. But the reason that Gyara Gyara becomes successful is that it's actually an entire ecosystem. Just में brands अपनी तरफ से उनकी नए launches लाते हैं, नए products लाते हैं. Pricing, sellers and brands give the lowest pricing that they've given in the year. उसमें आपके banks go most aggressive in terms of not only marketing but the discounts they give, and you have your offline partners involved in it. You have everyone sort of coming in together, and it makes a really explosive sort of event in 11/11. And अगर आप देखें कि जब हमने पहली दफा किया था तो November was not necessarily a buying season. October, November was not, people maybe towards the end of November were getting ready for Shadi season, but now 11/11 has become, like I said, हर जगह आपको ऑफलाइन भी कहीं जाएंगे आपको 11/11 की सेल दिखेगी. तो इनफैक्ट हमारा जो इस दफ़ा क्रिएटिव है वो ये है कि दराज इज द बिग बॉस ऑफ 11/11 बिकॉज बाकी सब तो करते रहेंगे मगर we are the OGs of 11/11. तो इसमें there's a lot that we've done to build up. In fact, अब आप देखेंगे तो there's a lot of, हमने पिछले साल में we've done एक, दो, तीन. So what makes 11/11 different? 11/11, what makes it different is that the amount of players, the amount of discounts, the amount of assortment. I mean, like I've been, in fact, I think just before this session, I was on the phone with the brand negotiating the price on one SKU. And, I know कि यार मुझे ये चीज़ जो मुझे इस प्राइस में मिल रही है कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं ले लूँगा कि अगर अगले साल मेरा टीवी खराब हो गया तो मुझे होना चाहिए ये टीवी इस प्राइस में मिल रहा है या ये एसी या ये हेडफोन्स या ये फैशन की जो चीज़ें हैं मुझे इस प्राइस में मिल रही है, मैं अभी से ले लूँगा. तो आई थिंक इट्स दिस एवरीवन कमिंग टुगेदर टू क्रिएट दिस the massiveness of 11/11, and it takes a lot of work, a lot of planning. I think पिछले 2-2.5 महीने से I don't think मेरी कोई ऐसी रात हुई है जहाँ मुझे पूरी नींद मिली है. But inshallah, I'm very hopeful that next week when we do the event,
It'll be able to deliver this value to the consumers and sellers, because sellers also look forward to it. In fact, riders, एक दफ़ा हम लोग, we do a management on the go, जब हम अलग अलग हब्स पे जाते हैं, तो एक राइडर से हमने पूछा, यार what does 11-11 mean to you? तो उसने कहा 11-11 ईद होती है हमारे लिए, इसलिए इतने पैकेजेस होते हैं, एक मौका होता है कि पैसे बना सकें. सेलर्स के लिए भी ये होता है कि वो पूरा साल वेट करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से कि 11-11 आएगा तो 10-20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा. कस्टमर्स प्लान करते हैं कि यार मुझे एक बिग परचेसेस करनी है, एक शादी सीज़न आना है, मुझे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं 11-11 पे लूँगा, बिकॉज द डील्स एंड आर रियली once in a year, if not, in fact, some of the deals that we have this time, it's cheaper than what it was a year and a half ago for some of this assortment. So it'll be quite exciting, inshallah. इंटरेस्टिंग. ये जो आपकी 11-11 सेल लगती है, इसके ऊपर एंड मैं क्यूरियस हूँ बिकॉज एक्चुअली स्पोक टू एन इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान में ना एक वो ज़माने में आया, अमेजोन VPA एंड अमेजोन मार्केटिंग एंड दिस एंड दैट. तो मैं एक जेंटलमैन से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार पाकिस्तान में लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एवरीबडी इज़ आफ्टर अमेजोन, दे डोंट रियलाइज द अपॉर्चुनिटी दैट दराज हैज़ टू ऑफर. ऑब्वियसली एक ज़माना था जब आपका बड़ा सिंपल था, यार जाओ जाके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो और वो हो जाएगा. बट एक सर्टन क्रिटिकल मास जब आ जाती है तो इट बिकम्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स. उसकी फिर मार्केटिंग भी हो जाती है, अगेन जिस तरह से अमेजोन की एग्जिस्ट करती है. सो आई एम क्यूरियस कि जो आप लोगों का लोकल इकोसिस्टम है, नॉट जस्ट ऑफ सेलर्स बट ऑल्सो नाउ अदर पीपल जो कि प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि वो अच्छे से बिके, जिसकी अब तो उसके ऊपर एक इकोसिस्टम ऑफ जिस तरह बाहर एग्जिस्ट करता है कि यार एक ज़माने में प्रोडक्ट्स बस पड़ी होती थी, अब तो प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी आ रही हैं, उसका मेटा डेटा किस तरह से इंटीग्रेट हुआ हुआ है. हाउ डू यू सी दैट इकोसिस्टम? डू यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्ले जिसका सिर्फ काम ये है कि व्हाट, क्योंकि दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर. एंड वहाँ पर येस सेलर्स आर इम्पॉर्टेंट, but beyond sellers, yes you can educate them as well, but beyond sellers now एक certain scale के बाद it's very very important to convert that seller, a single seller, into sort of an agency that has other roles as well, because वहाँ से job creation होती है, वहाँ से फिर बहुत सारी opportunities emerge करती हैं. So how do you manage the community aspect of Daraz? या देखिए, इसमें लाइक यू सेड, हमारे बहुत कम सेलर्स हैं जो जिसने अगर अकेले शुरू किया था वो अभी भी अकेले ही ऑपरेट कर रहा है. उसको अपनी ऑब्वियसली सिंपल थिंग्स लाइक पिकिंग, पैकिंग, सोर्सिंग, मगर उसके साथ साथ अकाउंट मैनेजमेंट. देखें, अब आप दराज पे आप फॉर एग्जांपल फेसबुक की तरह आप पे पर क्लिक कर सकते हैं सर्च पे. तो अगर एक बंदा ईयरफोन सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट आए. तो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज, कौन से कीवर्ड्स आपको करने हैं, how do you what sort of discounting strategy should you have, should you participate in campaigns, अगर आप participate करते हैं तो किस किस्म की आपको discounting देनी है कि consumer आए खरीदे. We give a lot of that visibility to the consumer. In fact, हमारा एक opportunity center है जिसपे हम ये भी बताते हैं कि ये फलाने products हैं that consumers are really searching for, they really want it, और इस price पे इनको चाहिए. So we give them that insight, and then it's our job to make sure कि यार अगर आप हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे दें तो वी ऑल्सो नीड टू कन्वर्ट इट. अब आप पर्सनलाइजेशन की दुनिया में जहाँ 20 मिलियन प्रोडक्ट है, अब मुजम्मिल हसन को अगर चीज़ देखनी है, आई नीड टू शो इट टू हिम. अगर एहसन को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको वो दिखनी चाहिए चीज़. और आई नीड टू मेक श्योर कि अगर सेलर मुझे प्राइसिंग दे, क्वालिटी दे, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोडक्ट मैं बेचूं, वो एक्चुअली कंज्यूमर को दिखे और वो कंज्यूमर खरीदे. तो इसीलिए हम मार्केटिंग इतनी करते हैं. आपको ऑब्वियसली पूरे मुल्क में हर जगह बिल बोर्ड्स, टीवीज़ एक्सेट्रा आपको दिखेंगे 11-11 के बारे में. और हमारा मकसद ये होता है कि वी मेक श्योर दैट वी टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द सेलर डज हिज पार्ट, कि जब ऑन साइट हम उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें और वो चीज़ें दिखाएं दैट रियली द कंज्यूमर रियली वांट्स टू बी एबल टू बाय. एंड देन वी गिव दैट इनसाइट्स टू द सेलर कि वो भी ही कैन ऑल्सो मैन्यूवर थिंग्स कि यार आपका प्रोडक्ट है 1100 रुपये का और जो बिक रहा है वो है 800 रुपये का. तो कि यार अब मैं अगर प्राइस डिक्रीज करूंगा तो मे बी आई कैन गेट मोर विजिबिलिटी एंड मोर ऑप्टिमाइजेशन ऑन सर्च एंड आई कैन परहैप्स सेल मोर. आपने बोला कि 11-11 के लोग वेट कर रहे होते हैं कि स्पाइक आता है, सारा कुछ होता है. अगर मैं जनरली उसी को एक्स्ट्रापोलेट करूँ ओवर द इंटायर ईयर, तो हाउ डू यू सी द कंज्यूमर स्पेंडिंग शिफ्ट्स ड्यूरिंग द ईयर? कोई आपके पास इंसाइट है ऑन किस टाइम के ऊपर एकदम से बढ़ती है या ये कम्प्लीटली रैंडम होती है? एंड देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि बिटवीन 2022 टिल डेट दरमियान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस के बम्प्स आए थे, तो वाज दैट डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड, लाइक वर यू एबल टू सी दैट डेटा रिफ्लेक्ट ऑन योर top line and bottom line as well?
कि यार एकदम से अब कंज्यूमर्स के हाथ रुक गए और उससे डायरेक्ट Yeah. एक इम्पैक्ट पड़ रहा है. Yeah, look, I think definitely इसमें seasonality तो बहुत है. You know, अगर आप summer के months में जैसे जब गर्मियाँ होती हैं तो your home appliances, your ACs might pick up. Your shadi season is now, so your fashion, health, and beauty, those things pick up. Eid time, your depending on the Eid, your either groceries are picking up or your health and beauty is picking up. So we have seasonality based on all the different events and the weather changes that are happening in Pakistan. And it's been interesting actually. ये जो phenomena जो आप बोल रहे हैं कि in terms of obviously जब महंगाई बहुत हो गई थी एंड जिस बंदे के पास अगर 20,000 रुपए खर्च करने के थे दैट्स ऑल ही स्टिल हैज. इट्स नॉट कि अब उसके पास या तो ये वो भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ गए. तो a lot of brands actually started adjusting the size of the products that they were selling. In fact मुझे याद है उस वक्त पे एक एसी था जो इट वाज पहले आपको सिर्फ 1 टन के एसी से कम आप लेते नहीं थे. अब आप 0.25 टन का एसी भी आ गया बिकॉज दैट्स द प्राइस पॉइंट दैट फिट्स. पीपल आर मोर विलिंग टू ट्रेड ऑफ फीचर्स कि यार ठीक है ये नहीं है, इट्स ओके, ये फलाना चीज़ नहीं है, इट्स फाइन. अगर पैकेजिंग थोड़ी छोटी है मैं थोड़े और चला लूँगा. अगर ये सैशे थोड़ा छोटा है, इट्स ओके, I'll stretch it a little bit longer. And I think we're starting to see that reverse a little bit now. Alhamdulillah, spending is starting to increase again. खास तौर पे पंजाब पे you see more spending starting to emerge than you do in Sindh, but the people are starting to spend again in Pakistan, and that pressure is not as much as it was, in, like you said, जब economic crisis हो रहा था. And alhamdulillah, I think as a country we're starting to pull out of it slowly, so you can see consumer spending pace accordingly. Right. Do you guys have any plans of launching Daraz Basics or Daraz Originals, or again you guys have the understanding of the categories, you understand कि यार सबसे basic ये चीज़ बिकती है हर साल बिकती है. You have the data really to expand on that the margins of that particular category, but also to be able to provide with a certain baseline of quality, right? Again, t-shirts हैं, basics, Yeah, technology की बहुत सारी चीज़ें हैं. we've done it before. We've never done it so super well. So we've actually decided, yeah, this is not the game that we're experts in. Let's focus on the things we're good at, and let's make sure we do that exceptionally well. So अभी तो कोई plan नहीं है to go back into that because it's a different game going towards manufacturing, designing, etc. हम करते थे, like I said, we were not excellent at it, so we would rather do the things we're excellent at. Right. And then the one last question. There's a lot of chatter around AI. That's the next big thing, possibly a bubble. That's what I believe. But bubbles also happen for a reason. जैसे कि .com bubble था. It does not mean it's a timeline thing. It doesn't mean कि उसका impact वो नहीं है. And so it's becoming increasingly clear कि yes, AI is the next revolution. You can argue about कि वो शायद इस टाइम पे ओवर हाइप हुई हुई है, तो वो शायद 2 साल में वो चेंजेस ना लेकर आए जो कि वो कह रहे हैं, शायद तो 10 साल में लेकर आए. But increasingly, everybody has to integrate AI into some form of the other in their strategy. चाहे वो बिल्कुल ही इंटरनली हो कि यार हमारे वर्क फ्लोज किस तरीके से AI ऑप्टिमाइज़ करेगी, चाहे वो कंज्यूमर सेंट्रिक हो कि यार AI जो फ्रंट एंड है या फ्रंट लेयर है वो किस तरीके से आने वाले वक्त में चेंज होगी, जिसमें ई कॉमर्स इनहेरेंटली लार्जली एज ए सर्च इंजन बिजनेस और प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है. बट सर्च इंजन जैसे एक सॉर्ट ऑफ यूनिफाइड सेंट्रल उस पर आ रहे हैं, तो इसी तरीके से ई कॉमर्स का भी यही है कि हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ SEO की रिप्लेसमेंट अब हो रही है विद GEO आई बिलीव. और इसी तरीके से अगर मैं ज़रास पे जाता हूँ या किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो आज की तारीख में मैं जाता हूँ, मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ, उसके अराउंड मुझे प्रोडक्ट्स रैंडमली शो होती हैं. दैट्स अ रिकमेंडेशन इंजन, राइट? क्या उसके अंदर मैं AI को यूज़ कर सकता हूँ कि वो मैं जाता हूँ जाके वो मेरे पास एक सेल्स एजेंट आ गया और मैं उससे कह रहा हूँ कि आई वांट दिस, मुझे इसे बताओ, इस तरह की चीज़ें बताओ, टाइम इस तरह का होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, एंड देन सडनली फ्रॉम दी 100,000 असॉर्टमेंट्स वो मुझे ऑप्टिमाइज़ करके एक चीज़ आ करके बेचे. अगेन टेकिंग ई कॉमर्स वन स्टेप फर्दर एंड ब्रिंगिंग इन द यूज़र एक्सपीरियंस जो कि मुझे रिटेल पे मिलता था कि यार कस्टमर सर्विस में वो बंदा आ रहा है, वो आके मुझे समझ रहा है, मुझे गाइड कर रहा है और फिर मुझे जाके रीडायरेक्ट कर रहा है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड इन द प्रोसेस वो मुझे साथ साथ एजुकेट करके अपसेल भी कर रहा है कि बाय द वे बिकॉज यू आर गेटिंग दिस देयर इज़ अ वेरी हाई चांस
कि तुम्हें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लो, ये भी देख लो चीज़ें। अभी तो बड़े एक रूडामेंट्री तरीके से होता है ना कि कस्टमर्स लव बाइंग दीज थिंग टुगेदर, वुड यू लाइक इट? तो मैं वो रैंडमली होता है, मैं कहता हूँ नहीं देखो वट एवर। बट अगर वो एक सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, एवटार बेस्ड है, चैटबॉट बेस्ड है, तो दैट कैन make it much better. Yeah. Are you guys thinking about AI, both within your workflows, within your sort of corporate side of things, as well as consumers? Yeah, absolutely. If you're not, then you're being stupid, to be honest with you. I'll give you an example how we've used it recently. Actually, कि अगर कोई seller एक तस्वीर लेता है specifically for fashion items, तो the models that exist today, we were not able to take a random picture वो अपनी दुकान में जो ले रहा है and to make it such that वो जब picture आए app पे, it's something that is actually something you want to buy. So we used we actually trained an AI model to be able to take those products and make them such that they actually fit. That shows a Pakistani AI model, an actual model, and it's clothed like it it would a Pakistani outfit would be worn. So we've already started exploring it on that side. अभी भी अगर आप ऐप पे जाते हैं, आप seller से भी सवाल पूछते हैं, तो the AI bot will actually start responding to you unless the seller needs to get involved. Even if you go to our own customer experience, customer service center, whatever we can handle very quickly through AI, we will handle. And the idea and the plan is to use more and more AI to make the consumer's life easier. जैसे आपने कहा, अगर आप eventually आप एक search में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इनफैक्ट डिस्क्राइब करके अगली दफ़ा मुझे पता है कि यार एहसन साया को इस किस्म की चीज़ें पसंद हैं, तो वो इट बिकम्स अ लॉट स्मार्टर. And so I think this is actually a huge opportunity for advancing e-commerce in Pakistan, because हमारे sellers अभी भी वो मतलब 98% of their market is offline. तो वो picture अगर चीज़ की लेगा, he'll just do it quick. He'll take a picture and he'll be like, यार फिर नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है भाई? आपने ना तो टाइटल लिखी है. अब हम AI के थ्रू टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं, साइजिंग सजेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट की जो फोटो है उसको we can clean it up, we can put it the way it should be. So we can do a lot of things through AI models that make it more scalable, and for the seller to be able to take more advantage and to mature more. Because अभी उसको ये फिगर आउट करना है कि टाइटल में मैं इंग्लिश में क्या लिखूंगा, मुझे पता ही नहीं है क्या लिखना है, तो यह काम करता हूँ, मैं नहीं बेचता दराज पे. अब वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं थ्रू AI. सो आई थिंक it actually, to me, I look at it as the ability to leapfrog. In the 50s, countries that invested in manufacturing were able to really leapfrog other economies. And to me, AI and the appropriate utilization of it can help Pakistan, especially when we will not be able to. We cannot just do a linear catch up to everyone else. We have to do a step function catch up. So isme we will have to utilize AI to be able to do that step function and not just be able to do slow catch up to other economies. Esther, I'm going to wrap this up. I'm going to ask you a couple of last questions that I ask all of my guests, and I'm curious to know about your response, particularly based on your own life. You've grown up primarily outside of Pakistan. Start में हमने इसके ऊपर बात भी की, कि आप वापस क्यों आए, कैसे आए, आ गए, चलें अच्छी बात है, लेकिन आपके आने के बाद जो है वो 3-4 नाजुक मोड़ पाकिस्तान के मज़ीद आ गए. तो ज़ाहिर है बंदा सोचता तो है, और ख़ासकर आप हैं भी कराची में, इट्स अ टफ प्लेस टू बी इन. इस्लामाबाद, लाहौर comparatively much more different. And so I'm curious to know two things. पहला, knowing what you know now, seeing what you've seen and the exposure that you've had globally, how do you see Pakistan of 2050, 25 years from now? And I want you to, not answer this question with any ifs and buts. Okay, if we are able to do this, if the government is able to do this, if people change themselves like this, but rather just take whatever you see right now and sort of try to extrapolate that based on the variables that, certain variables that are a given fact, that जो चीज़ें हो रही हैं, populations की ages up and down हो रही हैं, innovations certain expected हैं और वो हो रही हैं. तो उसकी नेचर को आप बदल नहीं सकते, उसको आप शायद टाइमलाइन को थोड़ा अप एंड डाउन कर लेंगे. उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए आप पाकिस्तान को कैसे इवॉल्व होते देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. एंड देन मे बी स्टार्ट ऑफ विद कि आप ई कॉमर्स को या डिजिटाइजेशन ऑफ बिजनेस को अगले
शॉर्ट टर्म में 5 years मीडियम टर्म में आप कैसा देख रहे हैं, एंड देन गो टूवर्ड्स पाकिस्तान इन जनरल इन द नेक्स्ट 25 years? Yeah, look, I think इसमें as digital payments grow, as ये जो trust grow होता है, seller की maturity grow होती है, आज अगर एक seller जिसकी 50% sales ई कॉमर्स से आ रही हैं और जिसकी 10 साल पहले 1% आ रही थी ई कॉमर्स से, जिसकी 50% आ रही है, वो इज़ गोना फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि वो जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर के लिए अच्छा हो। इससे उसके यार कारोबारी लोग हैं, तो अगर कारोबार कर रहे हैं तो ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस अच्छा जाए। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ई कॉमर्स विल कंटिन्यू टू पेनिट्रेट। अभी अब ये भी देख रहे हैं, जिस पिछले, अब आपने कहा कि 32 कंपनीज हैं जो लॉजिस्टिक्स कर रही हैं। जैसे जो कंपनीज शुरू करती हैं लॉजिस्टिक्स, उसकी वजह से फिर ब्रांड्स ऑपरेट कर सकते हैं, सेलर्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। इसके साथ साथ, look, I'm very optimistic about Pakistan of the future. It doesn't mean that there's no problems. I think, if you, I also don't think there's any point in talking about the problems because most people will just talk about the problems. और अगर आपको problems ढूंढने हैं तो आपको problems मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। मगर आपने, in my opinion, you need to focus on you need to really, like I said, look at the flowers and look at what is the most you can make out of it and what are the things you can control. I spoke a little bit कि जो पाकिस्तान का talent है, that's top tier in the world. I think that really inspires me. We have a country jahan we have over 225 250 million people, growing population, yes, but a young economy. Young economy is, it has opportunities with it. Yes, there's deep issues that can go wrong as well, but there's opportunities for this young economy. They are generally more likely to solve problems, more likely to change things, and I think that gives me a lot of hope कि जो Pakistan of 2050 inshallah will be a better Pakistan than the one we have today, and I think all of us have to take on the responsibility to do it ourselves. So I think I'm also maybe a hopeless romantic, and that is that I try not to focus on too many of the problems, because then it's a spiral where you just get lost कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, and then suddenly it's all मसले. So I think you have to sort of be able to pull out and focus on the things that are good and the things that are positive, and hope for the best, and plan accordingly, and look for problems and challenges as opportunities. And I think alhamdulillah Pakistan, it gives you many challenges and opportunities that you can explore. So I'm hopeful about the Pakistan of 2050 inshallah, and I hope, it saddens me a bit that people are so hopeless about it, because hope is it's the foundation of all of this. If you become hopeless, there is no way you're going to solve the problems. You have to maintain hopefulness. You have to almost remind yourself to be hopeful. In fact, that's why even in Islam it's so frowned upon to be hopeless. Because hopefulness is a starting point of you solving the issues. If you're like, yeah, it's done, then you're not going to do it. You're not going to solve it. So there's no reason to be hopeless. Whatever happens, there's no reason to be hopeless. And you almost have to pull yourself out and say, okay, ठीक है, मैं कैसे करूँगा? How do I make this better? Makes sense. Ehsan, thank you so much for taking the time out. I wish you all the very best for this year's 11/11 sale, and particularly with the Dex platform that's sort of opening up, and I'm curious to see how that sort of grows and what additional value you can add to the ecosystem. I know it's a competitive environment, but I'm excited to see what happens there. Thank you so much. Very nice chatting with you, and thank you so much for having me today. Likewise, and for all of you guys, let me know in the comment section below. I'm quite certain Daraz से आपने shop किया, अब तो होगा, करते तो होंगे. How's your experience been? Has it evolved over time? Has it gotten better? Let me know in the comment section what your feedback and overall experience is. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.